Good morning, all of you. In this part, we will discuss about the different important topics. That is the migration of ions, transport number, the different factors which affects transport number, ionic conductances, Walden rules, ionic mobility. In the previous lecture, we have already discussed about the term that is the electrolysis, and also discuss about the different laws of the electrolysis, that is the Faraday's first law of electrolysis, Faraday's second law of electrolysis. So now in present lecture, we will discuss about the migration of ions and the transport number along with the ionic conductance. So what do you mean by the term migration of ions? Migration means movement. In the previous lecture, we have already seen about the electrolysis. Means when we do the electrolysis of the molten NaCl, then what will happen? Means we have a container having the two different electrodes, and these electrodes may be the attackable electrodes or maybe the non-attackable electrodes. In the present case, we have taken here the non-attackable electrodes, means the electrodes whose involvement is zero during the electrolysis process are the non-attackable electrodes. Means मान लीजिए ये आपकी जो इलेक्ट्रोड्स हैं, अगर ये आपकी प्लेटिनम की हैं तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा. नो ऑक्सीडेशन ऑफ प्लेटिनम occur, no reduction of the platinum occur. That means that type of electrodes are non-attackable electrodes. And the electrolyte taken here is the molten NaCl. Molten means the melted NaCl. That is the must requirement during the electrolysis. The substance must be an electrolyte and never be the other substance. Covalent substance आपका नहीं होना चाहिए. Means the substance must produce the ions, must have the free ions. For the free ions, for the movement of the ions, we have the requirement that the substance, the electrolyte, must be in the molten state or in aqueous state. In present case, we have taken the NaCl in their molten state, and that NaCl now contain the free Na positive ion and the free Cl negative ion, means they are under the movement. But when we connect these electrodes with the battery through wires, then what will happen? Now the process will take place. Now the electrolysis process will take place. Then during which side, which type of ion will move? So that is the condition here. Means in the battery, the positive end is connected on the left hand side. That is the assumption. ये assumption है, ये convention है, ये हिदायत है, ये हमें ध्यान रखना ही पड़ता है. आप इस चीज को बदल नहीं सकते क्योंकि these are the general convention throughout the world. हमें ऐसा ही करना होता है. On the right hand side, the negative terminal of the battery should be taken और वो इलेक्ट्रोड से हम कनेक्ट कर देंगे. Means on the left hand side there must always be an anode, means oxidation takes place. Oxidation means loss of electron takes place, and loss of electron process takes place on the electrode. That electrode is called as the anode. ये हमने पहले भी आपको सिखाया था. ऑक्सीडेशन का फर्स्ट लेटर O is a vowel, एनोड का फर्स्ट लेटर A is a vowel. तो इस टाइप से आप ध्यान रखेंगे, वोवल वोवल साथ साथ रहेंगे. मींस द ऑक्सीडेशन प्रोसेस विल टेक्स प्लेस एट द एनोड. तो इस इलेक्ट्रोड का नाम एनोड रखा जाएगा. ऑन द राइट हैंड साइड, reduction process will takes place, means gain of electron process will takes place, and the electrode is called as the cathode. आप इसे कैथोड कहेंगे. मींस इमेजिनरी अगर हम लाइन ड्रा करते हैं तो देयर आर टू टाइप ऑफ कंपार्टमेंट. ऑन द राइट हैंड साइड देयर इज द cathode rod, so it is the cathodic compartment. On the left hand side there is anode, so it is called as the anodic department. Now if all these arrangement are already been done, then now what will happen during the electrolysis process? During the electrolysis process, now the movement of the ions will take place. The Na positive ion get moved towards the cathode, and the Cl negative ion get moved towards the बताएं शाबाश जल्दी से, मूव टुवर्ड्स द एनोड. मींस दैट मूवमेंट, जो ये मूवमेंट हुई है यहाँ पे आपने देखा है, Na पॉजिटिव आयन गेट मूव टुवर्ड्स द cathode by gaining the electron, and the Cl negative ion get moved towards the anode by losing the electron. So that means these two process will takes place at the cathode. The gain of electron takes place, means Na positive ion electron gain किए और वो Na के अंदर convert हो गया, means Na get deposited on the cathode.
Similarly, the Cl negative ion loses the electron and get converted into the Cl2 और Cl2 गैस वहां पे प्रोड्यूस होगी। तो मीन्स जो ये प्रोसेस अभी हमने देखी, इसमें मूवमेंट हुई है, आयंस की मूवमेंट हुई है टुवर्ड्स द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड हुई है। मीन्स Na पॉजिटिव आयन सिर्फ कैथोड की तरफ ही माइग्रेट करेंगे, Cl नेगेटिव आयन सिर्फ एनोड की तरफ ही माइग्रेट करेंगे। तो ये जो माइग्रेशन की जो ये प्रोसेस थी, जो ये मूवमेंट की जो प्रोसेस थी, इसी को माइग्रेशन ऑफ आयंस कहते हैं। तो means what do you mean by the term migration of the ions? Means the movement of the ions. The movement of the ions towards their respective electrodes in presence of electric field is called as the migration of the ions. Is called as the migration of the ions. लेकिन जब ये माइग्रेशन यहाँ पे होती है, तो ये माइग्रेशन के दौरान जो सब्सटेंस आपके डिपॉजिट हो गए, किस अमाउंट में डिपॉजिट हो गए, किस अमाउंट में डिपॉजिट हो गए, उसके लिए हमने पीछे फेराडेज लॉ भी अप्लाई किए थे, कुछ न्यूमेरिकल भी हमने डिस्कस किए थे। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम ये चीज कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो उसके लिए देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स। मींस हम डिफरेंट टर्म यूज करेंगे, हम ट्रांसपोर्ट नंबर वर्ड यूज करेंगे, हम हर आयन की जो मूवमेंट होती है, हर आयन अपना करंट प्रोड्यूस करता है, मींस आयनिक कंडक्टेंस होती है, हम वो टर्म अभी यूज करेंगे। और जो ट्रांसपोर्ट नंबर है उसको कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, वो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस प्रेजेंट लेक्चर के अंदर हम जो हमारी मेन टर्म्स यूज होने वाली हैं, आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर उन सभी को हम यहाँ पे इन ए वेरी ब्रीफ आपको समझाएंगे। तो अब हम देखते हैं अबाउट द ट्रांसपोर्ट नंबर। और ये हमने पहले ही अजम्पशन ले ली कि जो इलेक्ट्रोड्स हम लेंगे वो हमारी नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स हैं। हमने क्या एज्यूम किया कि जो इलेक्ट्रोड है वो हमारी कैसी हैं, दीज आर दी नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स। और हमने ये एज्यूम किया कि मान लीजिए हमारे पास ये डिफरेंट देखो कंपार्टमेंट भी बन गए, एनोडिक कंपार्टमेंट है, ये कैथोडिक कंपार्टमेंट है, एक सेंट्रल कंपार्टमेंट भी हमने एज्यूम कर लिया, दैट इज द, देखो ये रहा आपके डिफरेंट कंपार्टमेंट्स। हमने 2 इमेजिनरी लाइन यहाँ पे ड्रा की। 1 इमेजिनरी लाइन आपकी लेफ्ट हैंड साइड में, जिसने हमारा कौन सा पार्ट हो गया, टुवर्ड्स द एनोड, तो दैट इज द एनोडिक कंपार्टमेंट। एक कैथोड वाली साइड में हमने इमेजिनरी लाइन ड्रा की, सो दैट इज द कैथोडिक डिपार्टमेंट, ये कैथोडिक डिपार्टमेंट हो गया। तो 2 इमेजिनरी लाइन के बीच का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड एज द सेंट्रल डिपार्टमेंट, उसको हमने सेंट्रल डिपार्टमेंट का। ये सिर्फ अजम्पशंस हैं, ये सिर्फ क्या है, अजम्पशंस हैं। और इन्हीं अजम्पशंस को इस डायग्राम में शो किया गया है। वास्तविकता में, रियलिटी में इन अजम्पशंस को हम कैसे शो करते हैं प्रैक्टिकली, वो भी आपको समझाया जाएगा। तो फिलहाल हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर की आखिर सेंस क्या है? सेंस ये है कि जितने भी आयंस की जब मूवमेंट होगी तो उसके दौरान क्या होगा, आयंस की मूवमेंट, आपको ध्यान होगा ना, पीछे हमने आपको बताया था कि जो करंट है वो 2 वजह से चलता है। देयर आर द 2 मीन्स ऑफ द करंट। करंट चलने के 2 तरीके हैं। वो 2 तरीके क्या हैं? दैट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। नेचर ऑफ द सब्सटेंस मींस कंडक्टर कौन है। कंडक्टर अगर आपका मेटेलिक है, मेटेलिक कंडक्टर भी हो सकता है। कंडक्टर में भी द इलेक्ट्रोलाइट मींस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर भी हो सकता है। प्रेजेंट केस के अंदर क्योंकि हमने यहाँ पे एक कंटेनर लिया और इसके अंदर हमने बोलो क्या ले रखा है, यहाँ पे हमारे पास होगा कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट। बोलो हम क्या लेंगे इस कंटेनर के अंदर, कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट। मीन्स हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होगा। मीन्स करंट कैसे चलेगा फिर? अगर मेटेलिक कंडक्टर है तो करंट चलेगा ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है, तो करंट कैसे चलेगा? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द आयंस। उसी मूवमेंट ऑफ आयन को माइग्रेशन ऑफ आयंस कहते हैं। जब आयंस चलेंगे, आयंस का माइग्रेशन होगा, तभी तो करंट चलेगा। तो मीन्स कुछ करंट कैसे चलेगा, देखो जो माइग्रेशन होगी, तो अभी आपने देखा था 2 टाइप से माइग्रेशन हुई। मान लीजिए इस कंटेनर के अंदर जो हमने पॉजिटिव पॉजिटिव लिखा, नेगेटिव नेगेटिव लिखा, जैसे अभी हमने पीछे एग्जांपल भी लिया था, यहाँ पे हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखा है आयंस का इन द डिफरेंट कंपार्टमेंट्स। मीन्स पॉजिटिव आयन मान लीजिए Na पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन मान लीजिए Cl नेगेटिव आयंस हैं। मान लीजिए हमने एजम्पशन कर लिए Na पॉजिटिव है और मान लीजिए क्या है, Cl नेगेटिव है। AgCl डाल देंगे तो Ag पॉजिटिव आयन है, Cl नेगेटिव आयंस हैं। AgNO3 ले लेंगे, Ag पॉजिटिव आयन है, NO3 नेगेटिव आयंस हैं। तो मींस इन आयन की क्या होगी, मूवमेंट होगी। कैसे होगी, क्या बताया गया था? देखो Cl नेगेटिव आयंस देखो मूव कर जाएंगे कहाँ पे, बोलो
वो मूव कर जाएंगे यहाँ पे टुवर्ड्स द एनोड। वो Cl नेगेटिव आयन कहाँ से आएंगे, वो देखो ये भी आ सकते हैं, वो कैथोडिक डिपार्टमेंट के, मान लीजिए इधर भी तो है ना Cl नेगेटिव आयन, देखो ये Na पॉजिटिव आयन, तो जो Cl नेगेटिव आयन उनकी मूवमेंट होगी, बोलो किधर मूवमेंट होगी उनकी, टुवर्ड्स द एनोड। जब आयंस की मूवमेंट होगी तो करंट चलेगा। सिमिलरली Na पॉजिटिव आयन की मूवमेंट बोलो किधर होगी, Na पॉजिटिव आयन की मूवमेंट होगी टुवर्ड्स द, बोलो क्या, आपकी एनोड या कैथोड, उनकी मूवमेंट होगी आपकी कैथोड की तरफ। देखो ये डायरेक्शन गलत मत दिखा देना कभी भी, जो भी हमने शो करके आपको दिखाया है यहाँ पे, कुछ गलतियां बच्चे ऐसे कर देते हैं, इस उनकी मूवमेंट हमने दिखानी है कैथोड की तरफ। तो करंट चला, में जो टोटल करंट चला किस वजह से चला, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दीज टू टाइप ऑफ आयंस, दैट इज द पॉजिटिव आयन एंड द नेगेटिव आयन। मींस जो टोटल करंट होगा वो किसकी वजह से होगा, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दीज बोथ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयंस। लेकिन इस टोटल करंट में से कुछ करंट चला पॉजिटिव आयन की वजह से, कुछ करंट चला नेगेटिव आयन की वजह से, तो मींस द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट carried by the ion is called as the transport number or the transference number or the Hittorf number, because that term is given by the scientist, that is the Hittorf, so that called as the Hittorf number। means total current जैसे आपने देखा है ना मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर आपके टोटल मार्क्स आते हैं, मान लीजिए आपके टोटल मार्क्स, आपके जो एग्जाम हुआ वो आपके 600 मार्क्स का हुआ, तो आप क्या करते हैं, अपने टोटल मार्क्स को आप हमेशा देखो नीचे लिखते हैं। आपके आए कितने, आपके आ गए 595, तो आप हमेशा उसको ऊपर लिखते हैं 595 डिवाइडेड बाय 600। सिमिलरली टोटल करंट, जो टोटल करंट होगा वो आप कहाँ पे लिखेंगे, वो हम नीचे लिखेंगे, देखो इस टाइप से, टोटल करंट मींस द करंट कैरिड बाय द पॉजिटिव आयन प्लस टोटल करंट बाय नेगेटिव आयंस। ऊपर क्या लिखेंगे, जिसका भी हमें ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है, मींस द करंट कैरिड बाय द पॉजिटिव आयन, करंट कैरिड बाय बोलो क्या, अगर मान लीजिए हम पॉजिटिव आयन देखें तो वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नंबर आ जाएगा, बोलो किस चीज का होगा वो ट्रांसपोर्ट नंबर, वो ट्रांसपोर्ट नंबर होगा आपके कैटायन का, पॉजिटिव आयन का। सो दैट इज द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन पॉजिटिव आयन। तो यही डेफिनेशन है। तो क्या है डेफिनेशन ट्रांसपोर्ट नंबर की, टोटल करंट का कितना हिस्सा, टोटल करंट का कितना हिस्सा कैटायन की वजह से है, so that called transport number of the cation, means the fraction of the total current carried by an ion is called as transport number। the fraction of the total current carried by the cation is called as the transport number of cation, and the fraction of total current carried by the anion is called as the transport number of anion। तो जैसे हमने ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन के बारे में फार्मूला बनेगा, तो हमारा क्या बनेगा, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू करंट कैरिड बाय द बोलो किसके द्वारा, cation divided by the total current, that is called as the transport number of cation। Similarly, the transport number of anion is equal to current carried by the negative ion, that is the anion, divided by total current, that is the transport number of anion। तो ये बड़ी बेसिक चीजें हैं जो आपके सिंपल मैथमेटिक्स के बेसिस के ऊपर आप डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं, डेफिनेशन को भी आपको क्रैम करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती। तो मींस द करंट कैरिड बाय द कैटायन, देखो करंट क्यों चला, एक चीज और आप हमें बताएं, देखो आयंस तो है यहाँ पे, अगर हम सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट लेते तो क्या होता, अगर आप सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट अगर आप यहाँ पे ले लेते तो नो मूवमेंट ऑफ द आयंस मींस नो करंट। ये तो नेसेसरी कंडीशन थी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की, जो हमने आपको पहले बताया था कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कब चलेगी, जब इलेक्ट्रोलाइट आपके पास एटलीस्ट मोल्टन स्टेट के अंदर जरूर हो, आयंस मूवेबल स्टेट के अंदर होने चाहिए। आयंस मूवेबल स्टेट में कब होंगे, जब इलेक्ट्रोलाइट या तो मोल्टन स्टेट में हो या एक्वस फॉर्म के अंदर होगा। तो मीन्स यही अब हम आपको बताने वाले हैं कि करंट तब चलेगा जब आपके आयंस चलेंगे, आयंस चल रहे हैं मीन्स कुछ स्पीड से चल रहे हैं। फिर हमने ये भी बताया था कि मोर द स्पीड ऑफ द आयन मोर विल बी द करंट। नो स्पीड मीन्स सॉलिड स्टेट के अंदर नो स्पीड, नो मूवमेंट, नो करंट। फिर हमने ये भी बताया था मोर आयंस मोर करंट। लेकिन फिलहाल हम देखने वाले हैं सिर्फ इसके बारे में कि आयंस चले या नहीं चले। तो चलेंगे तो क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट हम मोल्टन लेंगे या एक्वस लेंगे, तो किस स्पीड से चले मींस द करंट कैरिड बाय द कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, स्पीड ऑफ द कैटायन। जितनी ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा करंट, जीरो स्पीड जीरो करंट। सिमिलरली
हम यहाँ पे अब क्या करते हैं, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लिखते हैं, तो इक्वल टू का साइन लगाया और हमने यहाँ पे k इज ए कांस्टेंट, और u क्या है, स्पीड है, c क्या है नीचे लिखा, कैटायन को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द स्पीड ऑफ द कैटायन। सिमिलरली जो करंट कैरिड बाय द एनायन क्या होगा, इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द एनायन। सिमिलरली हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब रिमूव करेंगे, रिप्लेस करेंगे और इक्वल टू का साइन लगाएंगे, दोबारा से कोई कांस्टेंट k और आगे मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ द एनायन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय UA, ए को एज ए सबस्क्रिप्ट आप लिख रहे हैं। उसके बाद हम क्या करें, हमारे पास जो ये दो इक्वेशन बन गई यहाँ पे, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा इनके बेसिस के ऊपर, हमने बताया था द टोटल करंट कैरिड बाय दीज आयंस इज इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू आयंस, जो दो आयन है इनका सम अप कर देंगे। किस चीज का सम अप कर दें, हम सम अप कर देंगे जो अभी हमारा फार्मूला बना KUC प्लस में KUA, means KUC plus में KUA, that is the total current carried by the ions, total current carried by the ions। अब इसके बाद हम क्या करें, ट्रांसपोर्ट नंबर कैटायन का कैसे निकालें, अभी तो आपको बताया गया था, डेफिनेशन है आपकी, बोलो डेफिनेशन क्या थी, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड बाय द कैटायन इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन को कैसे लिखेंगे, मींस टोटल करंट कहां पे आएगा, डिवाइडेड में, और टोटल करंट किसके इक्वल है, KUC प्लस में KUA, और ऊपर क्या लिखेंगे आप, करंट कैरिड बाय द कैटायन, वो क्या है KUC। तो मींस हमने यही लिखा, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन को NC से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल n और सबस्क्रिप्ट में C, दैट इज द NC मींस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन। कई बार TC भी लिख सकते हैं हम, ये आप ध्यान रखना, ट्रांसपोर्ट नंबर को स्मॉल t से भी रिप्रेजेंट कर देंगे, t के नीचे लिख देंगे, बोलो क्या, टी के नीचे क्या लिख देंगे, सी, या कई बार हम ऐसा भी कर सकते हैं, टी के नीचे लगा देंगे प्लस का साइन, या हम एन के नीचे लगा दें प्लस का साइन। तो मीन्स अलग अलग बुक के अंदर ये अलग अलग टाइप की रिप्रेजेंटेशन आपको मिल सकती हैं, तो आप इस चीज में पजल बिल्कुल भी ना हो। मीन्स एनसी लिख सकते हैं, एन पॉजिटिव लिख सकते हैं, टी सी लिख सकते हैं, टी पॉजिटिव लिख सकते हैं, दिस ऑल आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन। And transport number of cation now given by the speed of the cation, means the current carried by the cation, that is बोलो क्या आ जाएगा, बोलो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका KUC। तो मीन्स अगर आप देखो इसको पहले ऐसे लिखना चाहें, देखो इज इक्वल टू करके, देखो अगर मैं आपके सामने लिखूं, ध्यान देना, हम अगर ऐसे लिखें KUC डिवाइडेड बाय नीचे टोटल करंट मीन्स KUC प्लस KUA, तो कॉमन क्या निकलेगा, बोलो यहां से, कॉमन यहाँ पे निकलेगा नीचे एज ए डिनोमिनेटर के अंदर, की को आप कॉमन निकाल देंगे, देखो इस टाइप से, की कॉमन और UC प्लस UA, के से के कैंसिल हो जाएगा, तो मीन्स आपका क्या आ गया, ऊपर UC लिखेंगे आप, UC, तो क्या बन गया, UC डिवाइडेड बाय UC प्लस UA, या आप टोटल करंट कैरिड बाय द आयंस को वहीं पे आप K को कॉमन लिख सकते थे, K इज ए कॉमन, तो ब्रैकेट में आप क्या लिख देते हैं वहां पे, UC प्लस UA, आप ऊपर ही लिख दें, तो मीन्स K से K कैंसिल हो गया, तो आपका ये फार्मूला बन गया ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन का। देखो इस चीज को हम यहाँ से रिमूव कर दें, देखो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब आप समझ गए होंगे, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू UC डिवाइडेड बाय UC प्लस UA। UA UC में से किसी को पहले लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन्स दोनों का सम ही तो हमें लेना है। सिमिलरली ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, जिसको आप Na से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज गिवन बाय द करंट कैरिड बाय द एनायन, that is the UA divided by the total current carried, means क्या आ जाएगा नीचे, UC plus UA आपने नीचे लिख दिया, that is the speed, means जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है, इसीलिए हम हर जगह ऊपर जब लिखते हैं करंट कैरिड बाय कैटायन, तो हमारी ऊपर क्या आ जाती है, स्पीड आ जाती है। नीचे हम लिखते हैं टोटल करंट कैरिड बाय द आयन, तो नीचे क्या आ जाती है, द सम ऑफ द स्पीड ऑफ द कैटायन एंड द एनायन, सो दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखो क्या करेंगे,
अब हम जो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, दोनों को ऐड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर देंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है NC और NA, इन दोनों को आपस में आप ऐड कर देंगे, मीन्स NC प्लस में NA, NC प्लस में NA। देखो इस टाइप से किसी भी एक को A बना दें आप, इक्वल टू, देखो हमने क्या लिखा, UC डिवाइडेड बाय UA प्लस UC, इक्वेशन नंबर 1 आ गई, प्लस ये इक्वेशन नंबर 2 हमने लिख दी, UA डिवाइडेड बाय UA प्लस में UC। अब आप LCM लेंगे, जब LCM लेंगे तो नीचे बोलो कौन आएगा, UA प्लस में UC। उसके बाद देखो आपके इस साइड में बोलो कौन था, यहाँ पे UA बाय UC से देखो कैंसिल, तो ऊपर क्या बच गया, UC। बोलो क्या बच जाएगा आपका, UC। देखो UC बचेगा इधर, प्लस में दूसरी साइड में बोलो क्या बचेगा आपका, दैट इज द UA। तो UA प्लस UC या एक ही बात है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इक्वल टू 1 इज द आंसर। मींस द सम ऑफ द ट्रांसपोर्ट नंबर, बोलो क्या रहा, द सम ऑफ द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज ऑलवेज यूनिटी, इन द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज ऑलवेज यूनिटी। तो वो हमेशा यूनिटी रहेगा, वो हमेशा 1 रहेगा। देखो इस बात को देखते हुए, पढ़ते हुए, क्या आपको कुछ चीजें याद आई अपनी केमिस्ट्री के अंदर? जैसे आपने पढ़ा है सॉल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर, आप वहां पे पढ़ते थे मोल फ्रैक्शन के बारे में, मोल फ्रैक्शन के बारे में आपने क्या पढ़ा था? मोल फ्रैक्शन मींस आपके पास सॉल्यूशन था, एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। तो आप वहां पे पढ़ते थे द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन XA, x स्मॉल x से रिप्रेजेंट करते थे, XA प्लस XB इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सिमिलरली आपने यहाँ पे पढ़ा कि जो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, जो उनका सम होता है दैट इज ऑलवेज यूनिटी, वो हमेशा यूनिटी होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फार्मूला अभी हमारे पास आया इसको फर्दर भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो कैसे, क्योंकि उसके ऊपर उस तरीके से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। मीन्स जो आपने एक चीज तो यहाँ पे ये सीख ली इसी से कि NC प्लस NA इज इक्वल टू 1 आने का मतलब क्या है, मीन्स द वोल ऑफ द करंट इज कैरिड बाय द आयंस। पूरा का पूरा जो करंट है वो कौन कैरिड कर रहा है, दैट इज बाय द आयंस। एग्जाम में आ जाए, हाउ विल यू प्रूव दैट द टोटल करंट इज कैरिड ओनली बाय द आयंस, प्रूव इट। इसको कैसे प्रूव करें? इसको प्रूव करने का मतलब है आप ये प्रूव करें द सम ऑफ द ट्रांसपोर्ट नंबर इज 1। तो सम ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर इज इक्वल टू 1 कैसे प्रूव करें? आप ऊपर से स्टार्ट करते हैं, आप डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, साइड में डायग्राम भी बनाते हैं, उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, उनकी मूवमेंट को शो करेंगे, उनकी माइग्रेशन को शो करेंगे, और इस टाइप से कंप्लीट डेरिवेशन के द्वारा प्रूव करेंगे कि द सम ऑफ द ट्रांसपोर्ट नंबर इज यूनिटी, हेंस वी कैन से दैट द व्होल ऑफ द करंट इज कैरिड बाय द आयंस। अगर अब हम क्या करें यहाँ पे कि आपके पास देखो दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 भी है, इक्वेशन 2 भी है। अब हम दो फार्मूले यहाँ से डिराइव करेंगे। ध्यान दें, हमारे पास दो इक्वेशन है यहाँ पे। कौन कौन सी दो इक्वेशन है हमारे पास? एक तो आपको यहाँ पे क्लियर कट दिख रही है, एक तो हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। बोलो क्या थी वो, कि NC इज इक्वल टू UC डिवाइडेड बाय UA प्लस UC। और एक इक्वेशन नंबर 2 भी है, दैट इज NA इज इक्वल टू UA डिवाइडेड बाय UA प्लस UC। दोनों इक्वेशन को भी हम यूज करेंगे और देखो हमारा एक नया रिलेशन आ जाएगा। हमने क्या करेंगे अभी हम, कि डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय UA। जो इक्वेशन नंबर 2 है, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, अगर हम इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम इसको किससे डिवाइड कर दें, ऑन द राइट हैंड साइड। देखो जिधर आपका NA इधर डिवाइड नहीं करना, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे ऑन द राइट हैंड साइड तो देखो क्या चीज आ जाएगी। बोलो क्या चीज इसमें आ जाएगी? कहने का मतलब अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को ध्यान दे ऊपर, अगर मैं इसको UA से डिवाइड कर दूं, UA से मल्टीप्लाई कर दूं, तो व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा, ये हम करने वाले हैं यहाँ पे। मींस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। अगर हम अब यहाँ पे प्रॉपरली लिखना चाहें तो बोलो आप क्या लिखेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई ये आप जरूर लिख देना। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय UA, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको करके दिखाया। तो फिर उससे क्या हो जाएगा, देखो देखो जी नीचे जो डिवाइड वाला है UA, देखो ये तो ऊपर वाले UA के देखो डिवाइडेड में है, देखो है ना डिवाइडेड में। देखो अभी हम लिख के दिखाते हैं। सिमिलरली जो नीचे है ये UA प्लस UC, देखो ये UA प्लस में बोलो कौन, UC। इसके डिवाइडेड में कौन है, ये ऊपर वाला UA। मीन्स अब हम डिवाइड में लिखेंगे यहाँ पे, मीन्स न्यूमरेटर को भी हमने डिवाइड कर दिया UA से, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दिया UA से। आप ऐसा भी कह सकते हैं, या सिंपली आप ये कह सकते थे कि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर 2 बाय UA।
ऐसा किया तो देखो क्या निकला आपके पास, मीन्स Na इज इक्वल टू, ध्यान से देखते जाए, UA के डिवाइडेड में बोलो कौन आ गया, देखो UA ही आया है। नीचे जो था आपका, नीचे कौन था, UA प्लस UC के डिवाइडेड में भी बोलो कौन आ गया आपका, UA आ गया। देखो हमने अलग अलग से डिवाइड करके दिखा दिया। तो कई बार बच्चे ये कहते हैं कि सर ये दोनों के कैसे कर दिया आपने, तो एक ही UA लिया था। कई बार देखो सिंपल मैथमेटिक्स जो है वो कई बार बच्चे भूल जाते हैं, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, देखो वो बताते हैं आपको। हमने ये कहा है यहाँ पे, ध्यान देंगे आप, कि UA, देखो मैं इस साइड में आपको करके दिखा देता हूं, NA इज इक्वल टू, देखो UC डिवाइडेड बाय UA है यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 ली है आपने, तो UA डिवाइडेड बाय UA आ गया। ये तो आप समझ गए होंगे कि देखो ये वाला UA, देखो ये वाला UA इस UA के देखो डिवाइडेड में आ गया। क्लियर हो गया इतना, तो आ गया बच्चों इतना समझ में। उसके बाद देखो नीचे क्या है, जिन बच्चों ने ये कहा है कि सर बता दें, उनके लिए बता रहे हैं हम आपको, और भी ध्यान से सुनते रहें। जो दूसरा फैक्टर है उसमें क्या है कि देखो UA प्लस में UC इस पूरे के डिवाइडेड में था, देखो ये UA, देखो इस स्टेप से। क्लियर हो गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ऊपर तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो 1 आने वाला है। नीचे क्या आएगा, देखो देखो UA प्लस UC दोनों के डिवाइड में UA है, तो जिसको हम जब हम इनको सेपरेट करेंगे तो बोलो क्या बनेगा, UA डिवाइडेड बाय UA प्लस UC डिवाइडेड बाय, बोलो क्या है, UA है। देखो इस स्टेप से तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये तो हमने इधर लिखा था UA डिवाइड बाय UA, देखो जो ऊपर था उससे वो कैंसिल हो गया, देखो यहाँ पे। अब हम अपने मेन पॉइंट की उधर ही चलें, ये कैंसिल, यहाँ पे UA से UA कैंसिल हो गया, इक्वल टू बोलो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R। R किसको माना है हियर, R इज इक्वल टू, बोलो हमने R यहाँ पे किसको माना, R इज द रेशियो ऑफ, बोलो स्पीड ऑफ कैटायन डिवाइड बाय द स्पीड ऑफ द एनायन। ये चीज आप याद रख लेंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हम करवाएंगे आपको। तो R इज इक्वल टू UC डिवाइडेड बाय UA, दैट इज द R, ये R है यहाँ पे। क्लियर हो गया, आप समझ में आ गया होगा आपको। सो दैट इज द अवर न्यू रिलेशन। सिमिलरली अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अगर सेम काम हम करें इक्वेशन नंबर 1 के लिए तो क्या रिलेशन आएगा, बिल्कुल करते हैं। इफ वी सिमिलरली डिवाइड द इक्वेशन नंबर 1, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर ले आप यहाँ पे भी, इफ वी डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय UA से ही अगर हम डिवाइड कर दें ऑन द राइट हैंड साइड, देखो जैसे हमने ऊपर किया था, अब हम इक्वेशन नंबर 1 जो हमारी देखो ऊपर थी है, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1, उसको देखो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय UA, देखो जैसे मैंने ऊपर करके आपको दिखाया। तो फिर क्या होगा, देखो उसी टाइप से जैसे अभी आपको समझाया गया, देखो ऊपर तो क्या आ जाएगा, NC इज इक्वल टू UC डिवाइड बाय UA, देखो आ गया। नीचे उसी टाइप से डिवाइडेड में रहा तो हमने अलग अलग सेपरेट करके लिख दिया, तो UA से UA देखो नीचे डिनोमिनेटर के अंदर तो कैंसिल हो जाएगा। और UC प्लस UA क्या है, हमने किसको माना था, देखो पिछले फार्मूले में भी हमने UC प्लस UA की जगह बोलो हमने क्या लिख दिया था, R, दैट रेशियो इज कॉल्ड एज द R। तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी UC बाय UA को देखो हमने क्या लिख दिया, R, UA से UA कैंसिल, नीचे भी UC प्लस UA है तो R, तो हमारे पास ये नया रिलेशन आ गया। बोलो ये रिलेशन क्या बना हमारा, यहाँ पे दोनों रिलेशन है, दोनों को आप याद रखेंगे कि NA तो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R, और NC किसके इक्वल होगा, NC इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय 1 प्लस R। दोनों रिलेशन को आप ध्यान रखेंगे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर हो गया इतना। इसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट नंबर। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो ट्रांसपोर्ट नंबर को अफेक्ट करते हैं, ये तो आपको पता ही है। ट्रांसपोर्ट नंबर वर्ड को यूज हम कर रहे थे किसकी हेल्प से, स्पीड ऑफ कैटायन और स्पीड ऑफ एनायन का फार्मूला, उनकी जो टर्म्स थी वो हमने यूज की थी, क्योंकि द करंट कैरिड बाय द कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द कैटायन एंड द सिमिलरली आपका जो ट्रांसपोर्ट नंबर जो हमने देखा वो कैसे देखा, कैटायन और एनायन की फॉर्म के अंदर ही। ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे, यही डेफिनेशन थी। देखो फिर से आपको बता दें, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट कैरिड बाय एनायन इज कॉल्ड इट्स ट्रांसपोर्ट नंबर, वो उसका ट्रांसपोर्ट नंबर कहलाता है। तो अब हम फैक्टर्स देखेंगे। फर्स्ट फैक्टर इज द नेचर ऑफ द आयन। नेचर ऑफ द आयंस, आयन है कौन,
आयन कैसा है, तो मीन्स नेचर ऑफ द आयन के ऊपर डिपेंड करता है। मीन्स स्मॉलर द साइज ऑफ द आयन, मोर विल बी द स्पीड ऑफ द आयन। जितनी ज्यादा स्पीड होगी, मोर विल बी द ट्रांसपोर्ट नंबर। क्योंकि हमने बताया था कि अगर आयन चलेगा ही नहीं, नो मूवमेंट, जीरो ट्रांसपोर्ट नंबर। आयन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब तक चलेगा नहीं, नो करंट, नो ट्रांसपोर्ट नंबर। मीन्स अब हमें देखना क्या है कि जो चला कौन ज्यादा स्पीड से चला। तो मीन्स एक स्मॉल साइज का आयन है, एक लार्ज साइज का आयन है, किसकी स्पीड ज्यादा होगी। अगर हमारे पास मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट है तो ये चीज ध्यान रखें कि मीन्स ये कंटेनर है और हम एजम्पशन करें कि मान लीजिए एक बार हमने ले लिया यहाँ पे LiCl, LiCl, Li पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, और मान लीजिए ये हमने मोल्टन स्टेट के अंदर ले लिया, ये इसकी मोल्टन स्टेट है और इसमें Li पॉजिटिव आयन है। तो Li जो पॉजिटिव आयन देखो कहाँ कहाँ पे हैं आपके, देखो दोनों एंड के ऊपर देखो Li पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, मिड डिपार्टमेंट में भी, सभी डिपार्टमेंट के अंदर आपके Li पॉजिटिव, Cl नेगेटिव आयन देखो इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, देखो Li पॉजिटिव आयन की देखो माइग्रेशन हुई, देखो किधर आएगा बोलो, Li पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव की तरफ। बोलो एरो किधर दिखाएं हम, पॉजिटिव से नेगेटिव, मींस Li पॉजिटिव मूव टुवर्ड्स द कैथोड, देखो इस टाइप से मूवमेंट होगी। Cl नेगेटिव आयन किधर मूव करेगा आपके, ये मूव करेगा टुवर्ड्स द एनोड, देखो इस टाइप से इनकी मूवमेंट होगी। अगर अब हम चेंज कर दें, एक दूसरा कंटेनर ले लें, इफ वी हैव अनदर कंटेनर, उसको देखो इस कंटेनर को अपने माइंड में रखें। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ चेंज कर देता हूं मैं इसके अंदर, Li पॉजिटिव की बजाय मान लीजिए मैं यहाँ पे NaCl ले लू मोल्टन, मीन्स Li पॉजिटिव की बजाय देखो मैं यहाँ पे क्या ले लू, Na पॉजिटिव। एज्यूम करें ये दूसरा कंटेनर है, दिस इज अनदर कंटेनर, सेम कंटेनर नहीं है, ये दूसरा नया कंटेनर है। एक कंटेनर में LiCl है, दूसरे कंटेनर में Na पॉजिटिव है। नाउ द Na पॉजिटिव आयन विल मूव। आपने एनायन यहाँ पे कॉमन ले लिया, LiCl में Cl है, NaCl में Cl है, उसकी वजह से चेंज नहीं है। कंपैरिजन हम पॉजिटिव आयन का कर रहे हैं। Li का ग्रुप नंबर 1 में देखें, लिथियम का साइज छोटा होता है, सोडियम का आयन बड़ा होता है। लेकिन ध्यान रखें इलेक्ट्रोलाइट आपको मोल्टन ही लेना है, नहीं तो वाटर की वजह से जो आयन आएंगे, वाटर का इंपैक्ट हो जाएगा, वो हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट मींस व्हेन वी हैव द मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट, देन इफ वी कंपेयर the speed of the two ions, then which type of ion will have the more speed? The smaller the size of the ion, the smaller the size of the cation. अगर हम यहाँ पे cation डिफरेंट ले रहे हैं, तो कैटायन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे प्रेजेंट एग्जांपल के अंदर, तो मींस स्मॉलर द साइज ऑफ द आयन मींस Li पॉजिटिव आयन की स्पीड ज्यादा होगी, Na की स्पीड कम होगी, क्योंकि Li का साइज छोटा होता है। पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग भी आप जानते हैं कि डाउन द ग्रुप जाए तो साइज आपका इंक्रीज होता है। तो लिथियम पहले आता है, लिथियम के बाद सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। मींस आपने पढ़ा था हलीना के रवि शशि फ्रेंड, ऐसे करके आप सभी जो आपके एलिमेंट थे उनके नाम भी आपने याद किए थे, HLiNa, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, फिर पोटाशियम हलीना, के आ गया था, रबी, आरबी, रुबिडियम, CS सीजियम, FR फ्रेंचियम फ्रेंड, ऐसे करके आपने याद भी किया था। तो मींस लिथियम का साइज छोटा, तो स्मॉलर द साइज ऑफ द आयन उतनी ज्यादा उसकी स्पीड, मोर विल बी द स्पीड, मोर विल बी द ट्रांसपोर्ट नंबर, ट्रांसपोर्ट नंबर उतना ही ज्यादा होगा। क्योंकि आपने पढ़ा था ना, अभी क्या पढ़ा था आपने कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ जो कैटायन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा स्पीड ऑफ द कैटायन के। स्पीड ऑफ द बोलो किसके, कैटायन के होगा, UC के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कंपैरिजन हम किसको कर रहे हैं, सिर्फ कैटायन को लेके, क्योंकि एनायन तो कॉमन था दोनों इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, LiCl एक कंटेनर में, NaCl दूसरे कंटेनर में। तो ट्रांसपोर्ट नंबर किस पे ही डिपेंड किया, क्योंकि एक आयन तो कॉमन हो गया, तो ट्रांसपोर्ट नंबर डिपेंड किया कैटायन के ऊपर। तो द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द कैटायन। हमने पढ़ा था स्पीड किसकी ज्यादा होगी, वो स्पीड ज्यादा होगी जो साइज जिसका छोटा है, छोटा किसका, लिथियम का। तो मींस यही हमने हमारे पहले पॉइंट के अंदर पढ़ा कि द स्मॉलर द साइज ऑफ द आयन, more will be the speed of the ion, more will be the transport number and vice versa। मींस रिवर्स का मतलब जिसका साइज बड़ा है, Na पॉजिटिव आयन का साइज बड़ा है, तो उसका ट्रांसपोर्ट नंबर भी कम होगा। क्लियर हो गया इतना। अब हम देखो कोई दूसरा एग्जांपल ले ले, मान लीजिए हम कंपैरिजन कर दें यहाँ पे HCl और NaCl के बीच भी, तो क्या होता, तो हम लिथियम की बजाय मींस देखो हमने लिया कि ट्रांसपोर्ट नंबर कोई आपसे पूछे H पॉजिटिव का ज्यादा होगा या Na पॉजिटिव का, फिर साइज देख ले, किसका साइज आपका छोटा है, H पॉजिटिव आयन का साइज छोटा है एज कंपेयर टू द
Na पॉजिटिव। तो मीन्स एक कंटेनर में अगर हम HCl ले लें, दूसरे कंटेनर में NaCl ले लें, तो भी आप कंपैरिजन करके बता सकते हैं। मीन्स द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द H पॉजिटिव आयन विल बी ग्रेटर देन द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द Na पॉजिटिव। और कोई पूछे ऐसा क्यों, तो फिर हमारी बेसिक डेफिनेशन जो थी, जो हमने अभी पीछे डिराइव किए थे, जैसे मैंने अभी लिख दिया कि ट्रांसपोर्ट नंबर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द आयन, मींस द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द कैटायन। तो हमें स्पीड देखनी होगी। स्पीड किस पे डिपेंड की? साइज के ऊपर। तो इस टाइप से आप इस चीज की रीजनिंग दे सकते हैं यहाँ पे। तो मीन्स नेक्स्ट पॉइंट अब हमारा आ जाता है नेचर ऑफ द अदर आयन। नेचर ऑफ द अदर आयन, नेचर ऑफ द अदर आयन की अब सेंस क्या है यहाँ पे? नेचर ऑफ द अदर आयन की सेंस अब यहाँ पे ये होगी कि अगर हम, ध्यान दे मैं क्या कह रहा हूं, कि अगर हम ऐसा कर दें कि सीएल की स्पीड देखें दोनों आयन्स के अंदर, दोनों आयन के अंदर, तो अब हम क्या करेंगे? तो ट्रांसपोर्ट नंबर किसका ज्यादा होगा? देखो हमारे पास एक कंटेनर है, देखो दोबारा से हम अगर हम ये जूम करें कि एक कंटेनर हमारा ऐसा है, ध्यान देना मैं यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन है उनको हम देखो हम चेंज कर करके मैं लिख रहा हूँ। मान लीजिए एक कंटेनर ऐसा है जिसके अंदर हमने HCl लिया, मान लीजिए देखो H पॉजिटिव है, देखो मैं H पॉजिटिव लिख दिया, देखो मैंने डायग्राम में। एक दूसरा कंटेनर ऐसा लेंगे, देखो मैंने क्रॉस करके ही दिखा रहा हूं ताकि आपके सामने ये डायग्राम दिखता रहे कि दूसरे कंटेनर में हम ले रहे हैं NaCl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। देखो इस टाइप से क्लियर हो गया इतना। मींस दो कंटेनर है, दो कंटेनर ड्रा करने की बजाय मैंने ऐसे करके शो कर दिया। आप एग्जाम में दो डायग्राम बनाएंगे। तो मीन्स क्या हुआ कि अब हम कैसे एक्सप्लेन करें इस चीज को कि ट्रांसपोर्ट नंबर जो अदर आयन है, हम दूसरे आयन का देखना चाहते हैं, Cl नेगेटिव आयन का देखना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि Cl नेगेटिव आयन का क्या ट्रांसपोर्ट नंबर सेम रहेगा। क्या पता आपके दिमाग में ये इमेज आ गई हो कि दोनों में Cl तो नेगेटिव आयन कॉमन है, जैसे अभी मैं बोल रहा था, आपके दिमाग में इमेज आ गई हो कि ट्रांसपोर्ट नंबर तो Cl का तो सेम रहेगा क्योंकि दोनों में Cl है। लेकिन हमने पीछे पढ़ा भी तो था, एक इफेक्ट भी तो पढ़े थे हमने, और जिसे इंटरआयनिक इफेक्ट भी कहते हैं। मीन्स एक आयन को चलने से दूसरा आयन भी तो रोकेगा, दूसरा आयन भी तो रोकेगा। तो मैं सब हम क्या करें, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कि जो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ जो Cl नेगेटिव आयन है वो ग्रेटर होगा किसमें? NaCl के केस में देन इन HCl। ऐसा क्यों, कैसे करें एक्सप्लेन? देखो सिंपल फार्मूला है हमारे पास, तो हम फार्मूला लिख देंगे। बोलो क्या लिखे? कि जो जो आपका Cl नेगेटिव आयन है अगर उसको NaCl के अंदर देखें, मींस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl का कैसे लिखेंगे? बोलो द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन का फार्मूला क्या होगा? अभी तो आपको बताया था कि ट्रांसपोर्ट नंबर का सिंपल फार्मूला होता है कि मींस द स्पीड ऑफ द कैटायन एनायन, यहाँ पे Cl नेगेटिव आयन की, बोलो स्पीड ऑफ द एनायन, देखो UCl नेगेटिव डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द स्पीड ऑफ द बोथ ऑफ द आयंस। तो भी आपका क्या बन गया? ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द एनायन NCl नेगेटिव इज इक्वल टू UCl नेगेटिव डिवाइडेड बाय UCl नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, मींस U रिप्रेजेंट करता है स्पीड को। सिमिलरली अगर हम ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन Cl नेगेटिव का देखें किसमें? HCl में, तो क्या फार्मूला बनेगा? मींस NCl नेगेटिव इज इक्वल टू, बोलो क्या आ जाएगा? यहाँ पे H पॉजिटिव है यहाँ पे। तो सिमिलरली नीचे Na पॉजिटिव की बजाय आपका H पॉजिटिव हम लिख देंगे। सिमिलरली देखो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे हम फार्मूले में। देखो UCl नेगेटिव डिवाइडेड बाय UCl नेगेटिव प्लस, बोलो क्या आ गया यहाँ पे? UH पॉजिटिव। मींस अब आपको क्या दिखा? अब ध्यान से देखें आपको क्या दिखा? आपको ये दिखा कि इन दोनों फार्मूला के अंदर जो न्यूमरेटर है वो तो सेम है, मींस स्पीड ऑफ द एनायन ऊपर तो देखो सेम दिख रहा है, नीचे क्या आ गया? नीचे आ गया UCl नेगेटिव प्लस, प्लस के आगे डिफरेंट है। पहले वाला जो इक्वेशन है इसको अगर हम इक्वेशन नंबर देखो 1 कह दें, सेकंड वाले को देखो इक्वेशन नंबर अगर मैं 2 कह दूं, तो ध्यान से देखें इक्वेशन नंबर 1 में आपने क्या देखा कि नीचे Na पॉजिटिव है, यहाँ पे UH पॉजिटिव है। किसकी स्पीड कम, किसकी ज्यादा? UH पॉजिटिव की स्पीड मोर होगी, मोर स्पीड, क्योंकि इसका साइज छोटा है। Na पॉजिटिव की स्पीड लेस होगी, ये हमने पॉइंट नंबर 1 के अंदर पढ़ा था। क्लियर हो गया? तो मीन्स अब आप ये बताएं जो NCl नेगेटिव है देखो फर्स्ट के अंदर, ये इस Na पॉजिटिव के देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस UNA और फैक्टर तो देखो कॉमन है दोनों इक्वेशन में। देखो ये इतना पार्ट UCl नेगेटिव, देखो ये पार्ट देखो ये तो कॉमन है दोनों के अंदर, ये तो कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे। मींस NCl नेगेटिव
की जो वैल्यू होगी अब वो किस पे डिपेंड करती है, जो डिनोमिनेटर के अंदर UNA पॉजिटिव है या UH पॉजिटिव है। तो UNA पॉजिटिव को UH पॉजिटिव के साथ कंपेयर करते हैं तो वैल्यू ऑफ UNA पॉजिटिव इज लेस, मींस द स्पीड ऑफ द लार्ज साइज ऑफ कैटायन विल बी लेस, एंड UH पॉजिटिव इज मोर, मींस द स्पीड ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कैटायन इज मोर। तो मींस UNA पॉजिटिव की वैल्यू कम तो इनवर्सली है, तो NCl नेगेटिव की वैल्यू बोलो क्या होगी, ये होगी मोर इन द इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 में UH पॉजिटिव की वैल्यू मीन स्पीड ऑफ द H पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा होगी, तो NCl नेगेटिव की जो वैल्यू होगी इक्वेशन नंबर 2 में वो क्या होगी, दैट इज द लेस, वो लेस होगी। हो गया ना प्रूफ जो हम प्रूफ करना चाहते थे। बोलो ट्रांसपोर्ट नंबर Cl नेगेटिव आयन का कहां पे ज्यादा आया, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में मींस जब हमने इलेक्ट्रोलाइट कौन लिया, NaCl, तो यही तो हमने ऊपर लिखा था, द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द Cl नेगेटिव आयन इज ग्रेटर इन NaCl देन इन HCl। तो जो ट्रांसपोर्ट नंबर Cl नेगेटिव की जो वैल्यू होगी वो NaCl में ज्यादा होगी और HCl में क्या होगी, कम, हेंस प्रूव्ड। तो इस टाइप से आप प्रूव कर सकते हैं, ये बातें आप लिख देंगे जो भी मैंने आपके सामने बोला। क्लियर हो गया, दैट इज द पॉइंट नंबर 2, नेचर ऑफ द अदर आयन। ये अपने आप में भी एक क्वेश्चन है इस टाइप से। अब हम थर्ड पॉइंट लेते हैं, दैट इज द हाइड्रेशन ऑफ द आयंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रेशन ऑफ द आयन पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मींस अब इसकी सेंस क्या, हाइड्रेशन ऑफ द आयंस की मींस अब की बार जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेने वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइट, ये चीज देखो आपने लिख ली होंगी जो मैंने आपको बताई। आप ये फार्मूला के अंदर भी मोर लेस आप जरूर लिखेंगे, फिर नीचे आप अपनी स्टेटमेंट लिख देंगे जो मैंने अभी बोली थी आपके सामने। क्लियर हो गया, तो इनको देखो मैं क्लियर कर रहा हूं, ये सारी चीजें आपने लिख ली होंगी। साथ के साथ नीचे स्टेटमेंट भी लिखना कि इन केस ऑफ द NaCl, इन केस ऑफ द NaCl the value of UNA positive is less, so the value of NCl negative will be more. While in the equation number 2, the value of UH positive, the speed of the H as the speed of H positive ion as the value of UH positive ion is more, so the value of the NCl negative, that is the transport number of Cl negative ion, will be less. ऐसे आप लिखेंगे, hence we can say that the transport number of Cl negative ion is greater in NaCl than in HCl. ऐसे आप लिखना, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ, हाइड्रेशन ऑफ द आयंस जो था। अब हम यहाँ पे देखो क्या करने वाले हैं, हम जो इलेक्ट्रोलाइट जो अब हम लेंगे वो आप लेंगे एक्वस। बोलो कैसा लेंगे, देखो मैंने एक्वस लिख दिया यहाँ पे, एक्वस लेंगे आप, एक्वस NaCl लेंगे या एक्वस LiCl लेंगे, एक्वस फॉर्म के अंदर लेंगे आप, तभी तो हम इफेक्ट ऑफ हाइड्रेशन देखेंगे। मींस हाइड्रेशन हो जाए, आयन का हाइड्रेशन हो जाए। तो सिमिलरली अगर हम उसी टाइप से देखो दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट ले लें, देखो अगर हम ले लें इसके अंदर बोलो कौन, LiCl, तो बोलो कौन कौन से आयन होंगे, Li पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। देखो मैंने दोबारा लिख दिया आपके सामने, एक्वस होना चाहिए। अगर N और देखो इसको देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखो Li पॉजिटिव Cl नेगेटिव, देखो इस टाइप से। तो Li पॉजिटिव को देखो मैं क्रॉस करके देखो मैं कैंसिल कर देता हूँ, इसको मैंने काट दिया। मान लीजिए दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें हमने NaCl एक्वस ले लिया। देखो मैं यहाँ पे यहीं पे एक ही डायग्राम में देखो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, यहाँ पे Na पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे बोलो कौन होंगे आपके Na पॉजिटिव, देखो Na पॉजिटिव लिख दिया ना मैंने। एक्वस लेना है, ये आप जरूर ध्यान रखें। तो अब क्या होगा, देखो दो इलेक्ट्रोलाइट है, दो कंटेनर है आपके पास, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है दो, एक के अंदर LiCl, दूसरे में NaCl। एक्वस है मींस वाटर भी है। अब वाटर का इंपैक्ट देखते हैं, देखो क्या होगा। आपने एक चीज पढ़ी है वैसे, देखो जब भी हम ऐसी चीजों को कंपैरिजन करें तो आपके दिमाग में वो चीजें आ जानी चाहिए। वो क्या चीज है, आपने पढ़ा था रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। बताइए शाबाश, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है पीरियोडिक टेबल में? रिड्यूसिंग एजेंट वाले सब्सटेंस कहाँ है, एलिमेंट कहाँ है पीरियोडिक टेबल के अंदर? जो आपके ग्रुप 1 एलिमेंट है, मींस वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर दे, वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। द एलिमेंट व्हिच हैव द मोर टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। दैट इज द पार्शियल डेफिनेशन। कंप्लीट डेफिनेशन क्या होती है रिड्यूसिंग एजेंट की? मीन द substance which can lose the electron and get stabilized in the aqueous solution is called as the reducing agent। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। इलेक्ट्रॉन लॉस किया, वाटर के अंदर लॉस करने के बाद जो आयन बना वो वाटर के अंदर स्टेबलाइज हो गया, सो दैट इज द बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। वो आपका बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो मींस वर्ड आया कि
इलेक्ट्रॉन लॉस भी करे फिर स्टेबलाइज हो जाए, जैसे आपने पढ़ा था ना पीरियोडिक टेबल में, जो अभी हमने बताया था हलीना के रबी शशि फ्रेंड। अगर उसमें आप देखें, एक तो आप लिथियम ले लें, एक आप ले लें लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबिडियम सीजियम आप ले लें। देखो इस टाइप से ध्यान देना, देखो लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ध्यान देना, सीजियम ने भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। कॉन्फ़िगरेशन तो आप सभी जानते ही है ना, लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्या होती है, 1s2 2s1। इसकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस करेगा टू एक्वायर द ग्रुप 18 लाइक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लॉस करती 1s2 रह गया हीलियम लाइक कॉन्फ़िगरेशन। बोलो लिथियम के नीचे कौन होता है, हमने कैसे आपको याद कराया था, लिथियम के नीचे होता है, देखो बोलो कौन, सोडियम, फिर पोटाशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम आता है। तो लिथियम में वैलेंस शेल में आया 2s1, तो सोडियम में क्या आएगा 3s1, पोटाशियम में 4s1, रुबिडियम में 5s1, सीजियम में 6s1। तो देखो सिर्फ हमने वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन लिख दी 6s1 और डैश डैश कर दिया हमने। तो सीजियम ने भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, लिथियम ने भी, तो बोलो वहां पे क्या बना है, Li पॉजिटिव सीजियम पॉजिटिव। अगर हम सिंपल सॉलिड स्टेट की बात करें तो आप एकदम कह देंगे कि कौन इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, आप कहेंगे जिसका साइज बड़ा, क्योंकि जो लिथियम है इसका साइज तो देखो छोटा है इस टाइप से। देखो अगर हम इस टाइप से बात करें 1s2 ये 2s1, यहाँ पे था इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के देखो नजदीक है, इस इलेक्ट्रॉन को इजिली पिकअप करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इजिली लॉस नहीं होगा, मोर अट्रैक्शन है। अगर हम सीजियम की बात करें तो देखो ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो मींस ये लूजली बाउंड है, तो मींस ये इजिली लॉस हो जाएगा। ये बात ठीक है कि इतने डायग्राम को अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि लिथियम इजिली इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा, सीजियम इलेक्ट्रॉन इजिली लॉस कर देगा, यहां तक बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है यहां तक। लेकिन अब बात आ गई वाटर की, बात आ गई एक्वस सॉल्यूशन की, कि जब वाटर होता है, देखो जब वाटर होगा हमारे पास, अगर हम वाटर डाल दें तो वाटर के अंदर अब कौन स्टेबल, में जो स्मॉल साइज का लिथियम आयन है, इट गेट हेवीली हाइड्रेटेड, इट गेट हेवीली हाइड्रेटेड। देखो ये हेवीली हाइड्रेटेड हो जाएगा क्योंकि इसका साइज छोटा है, इसका साइज बोलो क्या है, छोटा है, हेवीली हाइड्रेटेड हो जाएगा। हाइड्रेशन के दौरान जब वाटर के साथ इसकी अट्रैक्शन ज्यादा होगी क्योंकि स्मॉल साइज का आयन है, मोर हाइड्रेशन, एक्सेसिव हाइड्रेशन विल टेक्स प्लेस एंड ड्यू टू दैट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द हाइड्रेशन एनर्जी। ये रिलीज होगी, ये रिलीज होगी। फर्स्ट स्टेप के अंदर जो एनर्जी दी गई दैट इज द, बोलो कौन सी थी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकला था वो पॉजिटिव थी, एनर्जी दी, यहाँ पे एनर्जी निकली सेकंड स्टेप में। ऐसे ही फर्स्ट स्टेप के अंदर सीजियम के केस में भी एनर्जी आपने दी थी, आयनेशन एनर्जी प्लस, और अब एनर्जी यहाँ पे भी निकलेगी हाइड्रेशन एनर्जी, लेकिन ये हाइड्रेटेड होगा क्योंकि इसका साइज बड़ा है। देखो सीजियम का साइज थोड़ा हमने बड़ा करके दिखाया, इट गेट हाइड्रेटेड टू ए स्मॉल एक्सटेंट, देखो मैंने थोड़ा सा दिखाया, लेस अट्रैक्शन ऐसे करके, मींस लेस स्टेबल। तो मींस लिथियम Li पॉजिटिव आयन बोलो स्टेबलाइज हो गया टू ए मोर एक्सटेंट, मोर स्टेबल है, और ये यहाँ पे लेस स्टेबल है। हर चीज यूनिवर्स में क्या होना चाहती है, वो मोर स्टेबल होना चाहती है। तो मोर स्टेबल कौन हो गया, मोर स्टेबल Li पॉजिटिव हो गया, उसकी एक्सेसिव हाइड्रेशन हो गई। मोर स्टेबल मींस लेस एनर्जी। लेस एनर्जी कैसे हुई, मान लीजिए आयनेशन एनर्जी शुरू में वैसे एज्यूम करके बता रहे हैं कि वहां पे वैल्यू मान लीजिए देनी पड़ी 100 जूल, वैसे लिख रहा हूं मैं एजम्पशन आपको सिर्फ समझाने के लिए। नीचे एनर्जी देनी पड़ी मान लीजिए सिर्फ 20 जूल, इजीली इलेक्ट्रॉन सीजियम से ही निकला क्योंकि कम एनर्जी देने से निकल गया। लेकिन अब जो यहाँ पे एनर्जी निकली, मान लीजिए वो एनर्जी निकल गई यहाँ पे 200 जूल, 200 जूल निकल गई, माइनस निकल गई, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या है, एनर्जी -100 में हो गई। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए एनर्जी आपकी ज्यादा नहीं निकली, थोड़ी सी एनर्जी निकली, मान लीजिए एनर्जी निकल गई यहाँ पे, वैसे हम लिख रहे हैं, मान लीजिए -50 निकल गई, -50 जूल। तो रिजल्ट क्या रहा इन दोनों का, दैट इज -30 जूल। यहाँ पे क्या हुई, -100 जूल। मीन स्टेबलाइज तो दोनों हुए हैं, कोई कम एक्सटेंट तक, कोई ज्यादा एक्सटेंट तक, लेकिन ज्यादा स्टेबलाइज कौन, जिसकी एनर्जी बहुत कम हो गई। बहुत कम किसकी होगी, -100 जूल, लिथियम आयन की एनर्जी बहुत कम हो गई इन द एक्वस सॉल्यूशन। और इसकी एनर्जी कितनी हो गई सीजियम आयन की, -30 जूल। सिर्फ हमने एजम्पशन लेके आपको समझाया है, स्टेबलाइज दोनों हुए हैं। बात है कौन ज्यादा स्टेबलाइज हो गया, कौन ज्यादा एक्सटेंट तक स्टेबलाइज हो गया इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद, वही होगा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, वही होगा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, लिथियम इज द बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। और ओवरऑल भी देखें द होल पीरियोडिक टेबल, द
बोलो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है इन द होल पीरियोडिक टेबल? दैट इज द लिथियम। जैसे कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? दैट इज द फ्लोरीन। उसको भी ऐसे ही आप एक्सप्लेन करते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन भी कुछ ऐसे ही थी। तो ये आपने कंपैरिजन किया और यहाँ पे समझाया कि कैसे हम ये एक एनामलस बिहेवियर है ये लिथियम का। वैसे तो अगर एज ए लेमैन अगर हम सोचते तो सिंपल कह देते कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा है, आप कह देते कि लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, होना ही नहीं चाहिए, सीजियम होना चाहिए क्योंकि उसका साइज बड़ा है, इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। लेकिन साइड में फैक्टर आ गया, रिड्यूसिंग एजेंट की कंप्लीट डेफिनेशन हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि द सब्सटेंस व्हिच कैन लूज द इलेक्ट्रॉन एंड गेट स्टेबलाइज्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो उस पूरी बात को ध्यान रखते हैं, पूरे डायग्राम को ध्यान रखते हैं, तो फिर हमारा आंसर भी लिखते थे। बोलो आंसर आप कैसे लिखते थे इसका? कि व्हाई द लिथियम इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट इन द पीरियोडिक टेबल इन द ग्रुप नंबर 1, कि आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन the small size, after losing electron, the Li positive ion, that is the small size Li positive ion, get heavily hydrated in the aqueous solution and get stabilized to a larger extent as compared to the CS positive ion, which has the larger size. अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे हमारे फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट नंबर की, तो वही चीज हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। लेकिन आपकी तैयारी अच्छे से चल रही या नहीं चल रही, उसका पता कैसे चले कि मींस कोरिलेटेड टर्म्स आपको याद है या नहीं? तो ये कोरिलेटेड टर्म मैंने आपको बताई है कि ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। मींस हाइड्रेशन ऑफ द आयंस मींस NCl नेगेटिव का जो ट्रांसपोर्ट नंबर है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया, वो तो हम पहले ही सीख चुके थे कि वो ग्रेटर किसके अंदर था? NaCl के अंदर था, देन इन HCl। ये तो हम ऊपर देख चुके थे। लेकिन अब हम देखने वाले हाइड्रेशन की बात। हाइड्रेशन का मतलब अब यहाँ पे क्या होगा कि स्मॉलर द साइज ऑफ द आयन मोर विल बी द हाइड्रेशन। अभी हमने देख लिया Li पॉजिटिव आयन का साइज छोटा है, उसकी ज्यादा हाइड्रेशन होगी। CS पॉजिटिव आयन का साइज बड़ा है तो उसकी कम हाइड्रेशन होगी। ओवरऑल देखो, अब अगली टर्म जो मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, इधर वाले डायग्राम में आप देखना, देखो, और उसकी कम स्पीड हो जाएगी। ऐसा क्यों हो जाएगा? देखो ध्यान से देखना, और कम उसका ट्रांसपोर्ट नंबर होगा। अब देखो बताते हैं, आपके पास मान लीजिए हम कंपैरिजन करते हैं अब यहाँ पे HCl और NaCl के बीच भी। तो मीन्स हम ऊपर जो मैंने LiCl के बारे में बताया, अब मैं Li की बजाय अगर यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, H पॉजिटिव लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे दो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, एक देखो यहाँ पे Li की बजाय बोलो मैं क्या ले लेता हूँ, H। देखो ऊपर डायग्राम में मैं हर जगह Li की बजाय H पॉजिटिव देखो मैं लिख देता हूँ। देखो मैंने लिख दिया ये H पॉजिटिव, देखो H पॉजिटिव और H पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रोलाइट में H पॉजिटिव को देखो मैंने कट कर दिया वहां पे आपको समझाने के लिए। मींस वी हैव द टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वन सेल कंटेनिंग HCl, अदर कंटेनर कंटेनिंग द NaCl इन द एक्वस फॉर्म। ये जरूर ध्यान रखें, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास। तो H पॉजिटिव है हमारे पास, H पॉजिटिव गेट हेवीली हाइड्रेटेड क्योंकि इसका साइज छोटा है। देखो इसका ओवरऑल साइज देखो बड़ा हो गया, लेकिन देखो मैं क्या बता रहा हूँ, फिर से देखिए आप डायग्राम की तरफ, H पॉजिटिव का साइज छोटा है, देखो छोटा है इसका साइज, लेकिन व्हेन इट गेट हेवीली हाइड्रेटेड ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, देयर नेट साइज नाउ बिकम्स ग्रेटर। अब इसका ओवरऑल साइज बड़ा हो गया, अब इसका ओवरऑल साइज बड़ा है तो ये कम स्पीड से चलेगा, इसकी स्पीड कम हो जाती है। सिमिलरली अगर हम Na पॉजिटिव को देखें, देखो इधर वाले पोर्शन को अब हम थोड़ा क्लियर कर दें यहाँ से। Na पॉजिटिव को देखें तो देखो ये हाइड्रेटेड टू ए लेसर एक्सटेंट, देखो कम वाटर मॉलिक्यूल हमने दिखाए, क्योंकि Na का साइज देखो, Na को अगर हम देखें देखो ध्यान से, तो इसका साइज देखो H पॉजिटिव से देखो थोड़ा सा देखो मैंने बड़ा करके दिखाया ना बड़ा, जो वाटर से हाइड्रेटेड हुआ लेकिन हाइड्रेटेड हुआ टू ए लेसर एक्सटेंट। तो इसका साइज अब देखें, ओवरऑल जो नेट साइज था हाइड्रेशन के बाद वो H पॉजिटिव का हाइड्रेशन के बाद साइज देखो बड़ा है, देखो बड़ा है। Na पॉजिटिव का हाइड्रेशन के बाद साइज छोटा है। कंपैरिजन करें आप तो बोलो नेट साइज आफ्टर हाइड्रेशन होने के बाद किसका ओवरऑल नेट साइज बड़ा है, किसका छोटा है? आपका H पॉजिटिव आयन का नेट साइज, रिजल्टेंट साइज बड़ा हो गया, Na पॉजिटिव का साइज छोटा रह गया आफ्टर हाइड्रेशन की बात है, क्योंकि हमारा पॉइंट नंबर 3 क्या है? हाइड्रेशन ऑफ द आयंस। किसकी हाइड्रेशन ज्यादा हुई? तो जो पॉइंट हमने ऊपर लिखे थे आप दोबारा से देखें, फर्स्ट लाइन को आप छोड़ दें, देखो इसको, ये तो कॉमन थी वैसे मैंने लिख दी। तो हम यहाँ पे बात ये करें कि स्मॉल, इसको बाद में देखेंगे इस लाइन को, कि स्मॉलर द साइज ऑफ द आयन, देखो आयन का साइज जितना छोटा होगा, जैसे H पॉजिटिव का साइज छोटा है, मोर विल बी देयर हाइड्रेशन, उसकी हाइड्रेशन उतनी ज्यादा होगी, जैसे H पॉजिटिव की हाइड्रेशन ज्यादा होगी। लेसर विल बी देयर स्पीड, उसकी स्पीड वेलोसिटी उसकी कम हो जाएगी, और स्पीड कम हो गई
तो हम जानते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द आयन। तो H पॉजिटिव का जो ट्रांसपोर्ट नंबर होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो नेट स्पीड है H पॉजिटिव आयन की वो कम हो गई है, वो कम हो गई है। सिमिलरली Na पॉजिटिव आयन का नेट साइज बड़ा है H पॉजिटिव से, नेट साइज आफ्टर हाइड्रेशन, तो इसका ट्रांसपोर्ट नंबर ज्यादा होगा, इसलिए हमने लिखा है एंड वाइस वर्सा। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द, बोलो क्या, हाइड्रेशन के बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे, प्रॉपर रीजनिंग देंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है अपने आप में, अलग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हर पॉइंट को अपने आप में क्वेश्चन मान के चलें। नेक्स्ट हम ले लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग के अंदर कंसंट्रेशन। देखो जो ये कंसंट्रेशन जो फैक्टर है आपका हमारा यहाँ पे, जो अगर हम देखें तो जो कंसंट्रेशन जो टर्म है ये वैसे आपके टू ए स्मॉलर एक्सटेंट तक ही इस चीज को इफेक्ट करती है। वैसे हमने देखा भी था, इंट्रायनिक इफेक्ट भी हमने पढ़े थे, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो चेंज हो सकता है आपकी कंसंट्रेशन के साथ, बट दैट चेंज इज वेरी वेरी स्मॉल, वो बहुत ही कम होता है। जैसे अगर हम क्या करें, देखो यही डायग्राम अगर हम ले लें और इसी के अंदर हम ये शो कर दें कि हमारे पास कोई सब्सटेंस है, मान लीजिए कैडमियम आयोडाइड है हमारे पास, मान लीजिए हमने ले लिया CdI2, CD2 पॉजिटिव है। देखो ये CD बोलो क्या ले लिया, 2 पॉजिटिव है, और I नेगेटिव आयन से, देखो I नेगेटिव I नेगेटिव, देखो ऐसे हमने लिखना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल तो सॉल्यूशन न्यूट्रल ही होता है। हर डिपार्टमेंट में हम ऐसा ही लिख देंगे, देखो CD2 पॉजिटिव और देखो I नेगेटिव, क्योंकि आपकी बार मोनोवैलेंट नहीं है, मींस इक्वल चार्ज नहीं है। कैटायन के ऊपर 2+ चार्ज है, एनायन के ऊपर -1 चार्ज है, इसलिए CD2+ लिखा। एक ही CD2+ लिखा तो 2 I नेगेटिव हमने लिखे। क्लियर हो गया इतना? अब ऐसे ही सेंट्रल डिपार्टमेंट के अंदर भी हमने लिख दिया। देखो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम आपको ये बताने वाले हैं यहाँ पे कि अगर हम एक काम कर लें कि हमारे पास 2 टाइप की कंडीशन हो। 2 टाइप की कंडीशन कैसी होंगी कि जो कंसंट्रेशन है हम जैसे ही बढ़ा देंगे, कंसंट्रेशन का मतलब डाइल्यूशन के साथ ही होता है, कम वाटर डालें ज्यादा वाटर डालें, कम वाटर डालेंगे तो मींस मोर कंसंट्रेशन है, कैडमियम आयोडाइड की मोर कंसंट्रेशन। ज्यादा वाटर डाल देंगे तो क्या होगा, मींस डाइल्यूट सॉल्यूशन बन जाएगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो मींस जैसे ही हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर लेस कंसंट्रेशन है तो देखो ये ब्रेक हो गया, कैडमियम आयन प्लस दिस मच। लेकिन अगर हम जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो आपका जो पहली स्टेज के अंदर बोलो क्या था, यहाँ पे देखो जो ये कैडमियम 2+ आयन प्लस देखो आपके I नेगेटिव 2 के साथ कंबाइन करता है, ये CdI2 बनता है। लेकिन अगर हम मोर कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं तो उस दौरान क्या होता है, जो CdI2 जो यहाँ पे बना, अब ये क्या करता है फर्दर, और जो नेगेटिव आयन है उनके साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बना देता है। देखो इस टाइप से मींस कॉम्प्लेक्स बनता है CdI4 नेगेटिव, 2 लिए तो 2 नेगेटिव, तो इस टाइप से ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और ये कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से अब क्या हो गया, देखो पहले तो आपके पास क्या था, अगर आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो CdI2 होगा, अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो CdI4 2 नेगेटिव, दैट कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड, दैट कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड। और जिसकी वजह से क्या पाया गया कि जो ट्रांसपोर्ट नंबर है कैडमियम आयन का वो चेंज हो जाता है, द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द कैडमियम आयन द कैडमियम आयोडाइड सॉल्यूशन, वो आपका चेंज हो जाता है, वो आपका डिक्रीज हो जाता है। पहले मान लीजिए हमारे पास जो सॉल्यूशन था, हम डाटा के बेसिस के ऊपर ही बताते हैं, मान लीजिए पहले कंसंट्रेशन थी 0.005 m, ये मोलरिटी की जब कंसंट्रेशन थी, तो ये पाया गया कि जो ट्रांसपोर्ट नंबर है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैडमियम का, बोलो वो कितना है, दैट इज फाउंड टू बी 0.444। कंसंट्रेशन देखो सिर्फ इतनी थी। लेकिन अगर हम जैसे ही कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, देखो इंक्रीज कर देते हैं, मींस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हमारे पास होता 0.025 m, इतने मोलरिटी का अगर हम सॉल्यूशन ले लेते हैं, तो उस टाइम पे जो ट्रांसपोर्ट नंबर है उसके ऊपर इफेक्ट देखो क्या पाया गया, 0.003, मींस ट्रांसपोर्ट नंबर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और ऐसा क्यों हुआ, और ऐसे ही अगर हम कंसंट्रेशन लगातार लगातार और ज्यादा इंक्रीज कर देंगे बहुत ज्यादा, तो इट इज फाउंड दैट द ट्रांसपोर्ट नंबर अपीयर्स टू बी 0, ट्रांसपोर्ट नंबर 0 हो जाता है।
तो मीन्स ये हमने कंसंट्रेशन के बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन किया एंड दैट इज द रियल डाटा, ये रियल डाटा था। अब नेक्स्ट फैक्टर ले लेते हैं। ये फैक्टर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते, पहले वाले फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं जो आपके अपने आप में डिफरेंट क्वेश्चंस भी थे। नेक्स्ट अगर हम ले ले टेम्परेचर इफेक्ट को, तो टेम्परेचर इफेक्ट में क्या पाया गया कि एक आइडियल वैल्यू होती है ट्रांसपोर्ट नंबर की, जैसे आप आरएफ क्रोमेटोग्राफी में भी आप लेते थे ना कि जो आरएफ की जो वैल्यू होती है रिटेंशन फैक्टर की 0.5 होती है। सिमिलरली इन केस ऑफ द आपके सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, द वैल्यू ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर, इफ द वैल्यू ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर इज फाउंड टू बी 0.5, तो उस टाइम पे ये पाया गया कि टेम्परेचर का इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। लेकिन ये पाया गया कि अगर जो ट्रांसपोर्ट नंबर है अगर वो लेस देन 0.5 है, देखो मैंने क्या लिखा, इफ द ट्रांसपोर्ट नंबर वैल्यू इज, देखो 0.5 हो, देखो 0.5 वैल्यू हो जाए दैट इज द आइडियल वैल्यू, बट इफ द वैल्यू ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर इज लेस देन 0.5 देन व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, हर कोई आइडियल सिचुएशन की तरफ जाना चाहता है, मिस्टर ट्रांसपोर्ट नंबर विल इंक्रीज। देखो 0.5 से कम है ट्रांसपोर्ट नंबर, और अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, देखो टेम्परेचर आप क्या कर देंगे, इंक्रीज, तो इट इज फाउंड दैट विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर द ट्रांसपोर्ट नंबर विल इंक्रीज। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कोई सॉल्यूशन है जिसका ट्रांसपोर्ट नंबर इज ग्रेटर देन 0.5 है, तो ये पाया गया कि अगर हम इस केस में अगर अब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर को बोलो क्या कर दें, इंक्रीज कर देते हैं, तो अब क्या होगा, तो अब ये पाया गया कि जो ट्रांसपोर्ट नंबर, देखो हर कोई क्या चाहता है, आइडियल वैल्यू, तो मिस टेम्परेचर इंक्रीज, देखो हर कोई आइडियल वैल्यू की तरफ जाना चाहता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इट इज फाउंड दैट द आइडियल वैल्यू ऑफ द ट्रांसपोर्ट नंबर इज 0.5, बोलो वैल्यू कितनी है, 0.5, दैट इज द आइडियल वैल्यू ऑफ द ट्रांसपोर्ट नंबर। ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे। और ये जो डाटा इकट्ठा किया गया है, ये जब हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया KCl, उसको लेते हुए एक्सप्लेन किया जा चुका है। if you will take an electrolyte in the form of the KCl and you will take it different कंडीशन के ऊपर, जब हम इसको लेते हैं कंपैरिजन करते हैं, तो ये पाया गया कि टेम्परेचर का इफेक्ट हम कैसे स्टडी करते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। सो दैट इज द नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज द टेम्परेचर। एक फैक्टर और भी है, दैट इज द इंटर आयनिक इफेक्ट, वो हम पहले डिबाई हक्कल थ्योरी के बेसिस के ऊपर कंप्लीट लेक्चर आपको दे चुके हैं। So these are the different factor which affect the transport number, जो ट्रांसपोर्ट नंबर को बोलो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। These are the different factors. इसके बाद हम देखेंगे ये जो दो टर्म थी, दैट इज द आयनिक मोबिलिटी इन द डिफरेंट वे। आयनिक मोबिलिटी मींस आयन की स्पीड, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, UC मींस द स्पीड ऑफ द कैटायन, UA दैट इज द स्पीड ऑफ द एनायन। मींस इसको हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मींस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द आयन। ऊपर आप कंटेनर में देखें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कि अगर मान लीजिए हमारे पास NaCl होता, मींस Na पॉजिटिव, देखो Cl नेगेटिव आयन, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन, मान लीजिए हमारे पास है यहाँ पे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन, तो Na पॉजिटिव किधर मूव करेंगे, टुवर्ड्स द, देखो इस टाइप से कैथोड, Cl नेगेटिव मूव करेंगे टुवर्ड्स द, देखो इस टाइप से एनोड की तरफ। तो जब ये मूव किए तो इन्होंने कोई ना कोई डिस्टेंस भी ट्रेवल किया। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द आयन इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में वो कितना चले, अंडर ए पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 1 वोल्ट पर सेकंड, और पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट पर सेकंड का हो, तो उस वक्त वो कितना चले इन 1 सेकंड, दैट कॉल्ड द आयनिक मोबिलिटी, उसे आयनिक मोबिलिटी कहा जाता है। सो दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द आयनिक मोबिलिटी, बेसिक डेफिनेशन ऑफ द स्पीड ऑफ द कैटायन और द एनायन, means the distance traveled by an ion in 1 second under the potential gradient of 1 volt per second is called as the ionic mobility of that particular ion. आयनिक मोबिलिटी को फर्दर भी हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये डिफरेंट न्यूमेरिकल के अंदर यूज किया जाएगा। आयनिक मोबिलिटी इज आल्सो बीन रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग वेज, मींस द मोलर कंडक्टेंस, ये जो डेल्टा लिखा दैट इज द मोलर कंडक्टेंस है आपकी यहाँ पे, या ई क्यू ले लें तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपकी बन जाएगी। डेल्टा ए मींस द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द एनायन, और डेल्टा सी का मतलब है यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस ऑफ द कैटायन। अगर हम इसको डिवाइड कर दें फैराडे कांस्टेंट से, दैट इज द 96500, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द आयनिक मोबिलिटी। इसको आप क्या कहते हैं, आयनिक मोबिलिटी कहते हैं, आयनिक मोबिलिटी कहते हैं। देखो ऐसा क्यों होता है, आपने पहले पढ़ा था ना, द चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ द आयंस,
आपने देखो पहले क्या पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है कि द चार्ज कैरिड बाय वन इलेक्ट्रॉन। आपने क्या पढ़ा था, कितना होता है वो, दैट इज 1 पॉइंट, जल्दी बताएं वैल्यू क्या होती है चार्ज कैरिड बाय वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power minus 19 coulomb, and the charge carried by 1 mole of electron means 6.023 into 10 raised to power 23। बोलो कितना था, आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया था इससे, 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power minus 19 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया था, 6.023 into 10 power 23 से। और अब ये जो वैल्यू आ गई थी, बोलो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई थी, दैट इज कम्स आउट टू बी 96500 कूलूम। दैट चार्ज इज कैरिड बाय, बोलो किसके द्वारा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया। आयनिक मोबिलिटी इसको रिवर्स करके हमने लिखा है एक दूसरे फार्मूले की फॉर्म में। अगर हम रिवर्स करके लिख दें, देखो जो चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब, अगर हम मोनोवेलेंट यूनिवेलेंट कोई ले लिया, जैसे हमने यहाँ पे ले रखा है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस, मींस Cl नेगेटिव है मींस -1 चार्ज उसी टाइप से लाइक दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, +1 मींस है तो प्लस ही, यूनि चार्ज है इनके ऊपर, यूनिट चार्ज है। तो हम क्या लिखे, रिवर्स करके अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 96500 चार्ज, 96500 charge is carried by the ion, then the molar conductance will be, बोलो क्या, डेल्टा, वो डेल्टा होगी। if the 1 coulomb charge is carried by the ion, 1 coulomb charge is carried by the ion, then the conductance will be, बोलो क्या कहेंगे, डेल्टा डिवाइडेड बाय 96500। कैरिड का मतलब जब आयन मूव किया, तो 96500 चार्ज कैरिड का मतलब जब इतना चार्ज लेके आयन चलता है तो मोलर कंडक्टेंस कितनी है, डेल्टा। अगर 1 कूलम चार्ज लेके आयन चलता है, 1 कूलम मतलब वो तो जो इतना चार्ज लिया, किसने लिया था, आपके 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स ने लिया था। 1 कूलम चार्ज लेके चलता है आयन, तो बोलो आपका मोलर कंडक्टेंस कितनी होगी, डेल्टा डिवाइडेड बाय 96500, दैट इज कॉल्ड एज द आयनिक मोबिलिटी। और लेकिन ये कब, ऊपर आप देखें, व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द आयन इन 1 सेकंड and the under the potential gradient of 1 volt per second is called as the ionic mobility। इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो हम देखने वाले हैं, दैट इज द आयनिक कंडक्टेंस। देखो जो कंडक्टेंस हुई, जो करंट प्रोड्यूस हुआ, वो आयन की वजह से ही तो हुआ। तो जो टोटल मोलर कंडक्टेंस है उसमें किसी आयन का कंट्रीब्यूशन कितना है, दैट इज कॉल्ड एज द आयनिक कंडक्टेंस। जैसे आप ट्रांसपोर्ट नंबर देख रहे थे, टोटल करंट चला, उस टोटल करंट के अंदर एक आयन का कंट्रीब्यूशन कितना है टुवर्ड्स द टोटल करंट, दैट कॉल्ड देयर ट्रांसपोर्ट नंबर। ऐसे ही जो टोटल कंडक्टेंस हुई, इस टोटल कंडक्टेंस के अंदर से किसी पर्टिकुलर आयन का कंट्रीब्यूशन कितना है, so the individual contribution of an ion towards the total molar conductance or the total equivalent conductance is called the ionic conductance। उसे आप ionic conductance कहते हैं। So that is the next term after the transport number, that is the ionic conductance। ये भी न्यूमेरिकल के अंदर काफी वर्ड यूज होंगे हमारे। तो आयनिक कंडक्टेंस ऑफ द कैटायन, जिसको डेल्टा सी से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द कैटायन। क्योंकि कंडक्टेंस मींस करंट, हमने सिर्फ रिप्लेसमेंट किया है, ट्रांसपोर्ट नंबर जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द कैटायन था, सिमिलरली जो आयनिक कंडक्टेंस है वो भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द कैटायन होगी। कंडक्टेंस तभी होगी जब आयन की स्पीड होगी कुछ। तो इज इक्वल टू क्या लिख दिया, के यू सी, जैसे मैंने पहले लिखा था, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएं, कोई कांस्टेंट लगा दे। सिमिलरली आयनिक कंडक्टेंस बाय एन आयन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द एन आयन इज इक्वल टू के यू ए। अब हम क्या करेंगे, हमने डिवाइड किया इन दोनों इक्वेशन को, मींस आयनिक कंडक्टेंस ऑफ द कैटायन को अगर हम डिवाइड कर दें आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन से, तो क्या होगा, के यू सी डिवाइड बाय के यू ए। के से के कैंसिल आपका हो गया, तो बोलो क्या आ गया, यू सी डिवाइडेड बाय यू ए आपका बच जाएगा। नाउ ऐड 1 ऑन बोथ दी साइड, दोनों साइड में अगर हम 1 1 ऐड कर दें, एक मैथमेटिकल रिलेशन हम डिराइव करने वाले हैं जो न्यूमेरिकल के अंदर बहुत काम आने वाला आपका। तो ऐड 1 ऑन बोथ द साइड, इफ वी ऐड 1 ऑन बोथ द साइड, देखो अपने 1 प्लस, हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, डेल्टा सी डिवाइड बाय डेल्टा ए इज इक्वल टू 1 प्लस यू सी डिवाइडेड बाय यू ए। तो ऐड 1 किया है हमने दोनों साइड के अंदर,
तो हम क्या करेंगे बोलो, एलसीएम ले लेंगे। तो बोलो क्या आ जाएगा इधर, डेल्टा ए देखो नीचे आ गया इन डिनोमिनेटर, ऊपर क्या आ गया, डेल्टा ए प्लस में डेल्टा सी। सिमिलरली यहाँ पे यू ए आपका डिनोमिनेटर के अंदर है, ऊपर क्या आ गया, यू ए प्लस यू सी। फिर अब आप क्या करें, जो पीछे चीजें आपने पढ़ी थी अभी ट्रांसपोर्ट नंबर के बारे में, तो ट्रांसपोर्ट नंबर कैसे आएगा, देखो ये स्पीड वाला जो फार्मूला था, ट्रांसपोर्ट नंबर कैसे है, अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर दें तो फिर ट्रांसपोर्ट नंबर शब्द को आप यूज कर सकते हैं या रिवर्स करके आप यहां पे लिख सकते हैं, लेकिन हम कर लेते हैं रेसिप्रोकल। ऊपर वाली इक्वेशन को अगर हम रिवर्स करके लिख दें ऑन बोथ राइट एंड द लेफ्ट हैंड साइड, तो देखो क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा ए डिवाइड बाय डेल्टा ए प्लस डेल्टा सी बन गया, राइट हैंड साइड के अंदर यू ए डिवाइड बाय यू ए प्लस यू सी बन गया। अब यू ए डिवाइडेड बाय यू ए प्लस यू सी क्या है, ये क्या है, दैट इज द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एन आयन, दैट इज द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एन आयन। एन ए लिख दें, टी ए लिख दें, एन नेगेटिव लिख दें, टी नेगेटिव लिख दें, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन आप इसकी लिख सकते हैं। सो दैट इज द न्यू नेक्स्ट रिलेशन। सिमिलरली अगर हम फर्दर इसको लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे, डेल्टा ए इन्फिनिटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर अगर हम देखना चाहें तो डेल्टा ए इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा ए प्लस डेल्टा सी क्या है, टोटल मोलर कंडक्टेंस, मींस द कंडक्टेंस ऑफ एनायन डिवाइडेड प्लस में कंडक्टेंस ऑफ कैटायन, इन दोनों का अगर हम सम कर दें तो बोलो क्या आ जाएगा, टोटल मोलर कंडक्टेंस या टोटल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दैट इज इक्वल टू सेम वही ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन के इक्वल आपकी आ गई। फर्दर हम क्या लिख सकते हैं कि जो डेल्टा ए, देखो ये इसको यहीं पे रख लें, डेल्टा ए को यहीं पे रख लें, और डेल्टा इन्फिनिटी, डेल्टा टोटल जो था उसको मल्टीप्लाई कर दे दूसरी साइड में जाके, तो एन ए मल्टीप्लाइड विद ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन मल्टीप्लाइड बाय टोटल मोलर कंडक्टेंस या टोटल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, व्हाटएवर मे बी द नेचर ऑफ द कंडक्टेंस। तो आपका ये एक रिलेशन आ गया, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपके बनेंगे, ये जरूर याद रखेंगे कि डेल्टा ए at infinite dilution means the molar conductance or the equivalent conductance of the anion at the infinite dilution is always equal to the product, is always equal to the product of the, बोलो किन दो चीजों का प्रोडक्ट है, the transport number of that ion, that means here the transport number of the anion, and बोलो क्या, total equivalent conductance at the infinite dilution. Similarly अगर आप कैटायन के बारे में लिखना चाहें तो डेल्टा C at the infinite condition is equal to the NC multiplied by total molar or the equivalent conductance at the infinite dilution. So these are very two important relation, ये बहुत important relation है दोनों के दोनों, ये आपके न्यूमेरिकल के अंदर यूज होने ही होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अब आप तो आज जितने भी रिलेशन देखें सभी को अब हम न्यूमेरिकल्स के अंदर देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बेसिक सिंपल सा रूल है, बड़ा सिंपल सा रूल है, जिसमें इफेक्ट हम विस्कोसिटी के साथ एक्सप्लेन करेंगे इसको कि विस्कोसिटी का क्या इंपैक्ट होगा। देखो वाल्डन रूल क्या बताता है कि इट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट ऑन द आयनिक कंडक्टेंस, कि आयनिक कंडक्टेंस के ऊपर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी का क्या कोई फर्क पड़ेगा, उसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए रूल दिया वाल्डन ने, दैट कॉल्ड एज द वाल्डन्स रूल। और इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि इट स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ बोलो किन दो चीजों की प्रोडक्ट, देखो यहाँ पे बीच में ध्यान दे यहाँ पे ये आपकी प्रोडक्ट है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, मींस द प्रोडक्ट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मींस जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगी, मींस द टोटल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे बनेगी, जब हम कंडक्टेंस ऑफ द कैटायन प्लस कंडक्टेंस ऑफ एनायन को सम अप कर दें, that is the total equivalent conductance of the electrolyte at the infinite dilution and coefficient of viscosity, ये जो ईटा हमने लिया है ये coefficient of viscosity है, और S जो लिखा है वो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है, is always the constant। इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, देखो यहाँ पे दोबारा देखें, इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट होगी। आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, इकट्ठा लिखना चाहते तो देखो इस स्टेप से, टोटल कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये टोटल कंडक्टेंस यहाँ पे हमने लिख दी, यहाँ पे टी लिखना चाहें तो टी भी लिख सकते हैं, TOTAL टोटल लिख सकते हैं। तो मींस द प्रोडक्ट ऑफ the total molar conductance या total equivalent conductance and the coefficient of viscosity of the medium is always constant at a particular temperature, means और फैक्टर आपको कांस्टेंट रखने होंगे, आप टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करेंगे तो जो विस्कोसिटी चेंज हो जाएगी, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे।
तो मींस दैट इज कॉल्ड एज द वॉल्डन रूल, इसे वॉल्डन रूल कहा जाता है। तो ये बेसिक देखो सिंपल इतना सा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद अब हम अपने न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ चलते हैं। 2-3 न्यूमेरिकल लेंगे हम बड़े बेसिक से। मींस क्वेश्चन है हमारा पहला के द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ ए वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaNO3 एट 18 डिग्री सेल्सियस इज 105.2 ohm inverse centimeter square. If the ionic conductance of the NO3 negative ion in the solution is 61.7 ohm inverse centimeter square, calculate the transport number of the Na positive ion in the solution. तो अब हम क्या करें, कैसे निकालें हम ट्रांसपोर्ट नंबर को? तो देखो बड़ी बेसिक चीज है, क्या क्या चीजें गिवन है यहाँ पे, उसके बेसिस के ऊपर हमें न्यूमेरिकल निकालना है। देखो ये फार्मूला अभी आपने सीखा था कि जो मोलर कंडक्टेंस है या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द एनायन एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बोलो किसके इक्वल होगी? दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर, दैट इज द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन मल्टीप्लाइड बाय द टोटल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या इनकी वैल्यू गिवन है? देखिए शाबाश, हमने एनायन क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू गिवन थी दैट इज द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ द NO3 नेगेटिव आयन थी, एनायन की गिवन थी, इसलिए हमने एनायन वाला फार्मूला लिखा। तो इस फार्मूले में हम क्या करें, 61.7 ये जो वैल्यू है ये कहां पे पुट करेंगे? देखो आयनिक कंडक्टेंस यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे पुट करेंगे, आप जल्दी बताएं शाबाश, बोलो कहां पे पुट करें आप? ये आप पुट करेंगे, आयनिक कंडक्टेंस गिवन है, देखो ये यहाँ पे आप पुट करेंगे, दैट इज द आयनिक कंडक्टेंस है ये आपकी। डेल्टा ए इंफिनिटी की वैल्यू 61.7 गिवन है। उसी टाइप से जो टोटल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो कितनी गिवन है? दैट इज 105.2। इसको कहां पे पुट करेंगे? इसको आप पुट करेंगे यहाँ पे टोटल वैल्यू की तरफ। तो क्या आ जाएगा आपके पास? Na, दैट इज द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ NO3 नेगेटिव आयन। तो Na किसके इक्वल हो जाएगा? दैट इज डेल्टा ए इंफिनिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा टोटल। डेल्टा ए की वैल्यू देखो पुट कर दे, जैसे आपको बताया था 61.7 डिवाइडेड बाय टोटल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितनी है? 105.2। आप डिवाइड करें, आपके पास आंसर आएगा, बोलो क्या आएगा? 0.586 विल बी द आंसर। आप कैलकुलेशन करके अपने लेवल पे भी देखें। उसके बाद सम ऑफ द ट्रांसपोर्ट नंबर आपने याद किया था, बोलो क्या होता है? व्हाट इज द सम ऑफ द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन? दैट वैल्यू इज ऑलवेज यूनिटी, दैट वैल्यू इज ऑलवेज 1, वो 1 होती है। तो मींस द NC प्लस Na इज ऑलवेज 1। तो NC किसके इक्वल हो जाएगी? NC प्लस में Na इज ऑलवेज इक्वल टू, बोलो क्या होती है? दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। देन व्हाट विल बी द NC? NC इज इक्वल टू 1 माइनस Na, 1 माइनस में Na हो जाएगी आपकी। Na हम ऊपर निकाल चुके हैं, तो मींस 1 माइनस 0.586 एंड दैट आंसर विल बी द, बोलो क्या? 0.414, दैट विल बी द आंसर। तो इस टाइप से हम ट्रांसपोर्ट नंबर डिटरमाइन कर सकते हैं। कैटायन कौन है यहाँ पे? Na पॉजिटिव आयन। तो आप जहां पे मैंने C लिखा, देखो जहां पे मैंने C लिखा आप उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? हर जगह देखो इस टाइप से Na पॉजिटिव, देखो ऐसे करके आप लिख सकते हैं। जहां पे NC लिखा, NC मींस कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर। जहां पे हमने A लिखा था, देखो जैसे ऊपर मैंने A लिखा, वहां पे लिख सकते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ SaNO3 नेगेटिव। आप ध्यान रखें, जहां पे मैंने सबस्क्रिप्ट में A लिखा है, आप वहां पे NO3 नेगेटिव लिख दें। जहां पे मैंने C लिखा, वहां पे सबस्क्रिप्ट में आप Na पॉजिटिव लिख दें, या आप ऐसे भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हम साथ के साथ आपको बता ही रहे हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं अब हम। देखो स्टेटमेंट आपके सामने है, इसी पूरी स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें अपना न्यूमेरिकल निकालना है। देखो फिर से हम बता दें, यहाँ पे जो आपका फार्मूला था डेल्टा ए इंफिनिटी इज इक्वल टू, बोलो क्या था? Na ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, टोटल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये फार्मूला हमने क्यों लिखा? बताएं शाबाश जल्दी से। यही हमने क्यों लिखा? क्योंकि इस पूरे फार्मूले के अंदर तो आपके डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोर्ट नंबर गिवन है और टोटल मोलर कंडक्टेंस भी यहाँ पे गिवन है। हमें निकालनी क्या आपकी बार? आयनिक कंडक्टेंस निकालनी है, आयनिक कंडक्टेंस निकालनी है। ट्रांसपोर्ट नंबर आर गिवन, ट्रांसपोर्ट नंबर गिवन है दोनों के, एक का भी गिवन हो तो भी आप दूसरे का निकाल सकते थे। तो फिर हम क्या निकालेंगे? बोले यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द एनायन एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दैट इज गिवन बाय Na की वैल्यू कितनी है? 0.534, दैट इज गिवन, मल्टीप्लाइड बाय टोटल मोलर कंडक्टेंस कितनी गिवन है? AgNO3 की। देखो आप क्वेश्चन में देखे 115.8, दैट इज गिवन, तो वो हमने देखो यहाँ पे पुट कर दी। तो इस टाइप से आपका आंसर कितना आ गया? 61.837, दैट इज द
मोलर कंडक्टेंस, दैट इज द मोलर कंडक्टेंस। यूनिट आपको पहले सिखा चुके हैं, यूनिट आप आगे लिख देंगे कि मोलर कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, वो आप आगे जरूर लिख दें। आपको पहले बेसिक लेक्चर के अंदर सिखा चुके, कुछ चीज आपके लिए छोड़ रहे हैं हम। उसके बाद सिमिलरली जो मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन का फार्मूला सिमिलरली क्या होगा, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन मल्टीप्लाइड बाय द टोटल मोलर कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। वैल्यू उसी टाइप से पुट कर दें। एनसी की वैल्यू गिवन है, ना भी गिवन हो तो 1 माइनस आप कर सकते थे 0.534 को, तो 0.466 मल्टीप्लाइड बाय 115 एंड आंसर कम्स आउट टू बी 53.962। दैट इज द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द कैटायन, मोलर कंडक्टेंस ऑफ द कैटायन। तो इस टाइप से आप निकाल लेंगे। देखो कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर ये इसकी यूनिट आप हमें दोबारा बता दें। देखो आपने ये पढ़ा था कि जो मोलर कंडक्टेंस होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द 1000 मल्टीप्लाइड बाय कापा, दैट इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय द मोलरिटी। आपने ध्यान दिया होगा जो मोलरिटी होती है। अब हम अगर इन सब की यूनिट आप लिख दें, नीचे बोलो क्या था यहाँ पे, मोलरिटी। आप भूला ना करें चीजों को। तो डेल्टा एम इज ऑलवेज इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कापा की यूनिट बोलो क्या है, कापा क्या था आपका, जल्दी बताएं कापा क्या है, कापा क्या था, कापा कैसे निकाला था आपने। तो देखो ये भी आपको याद होना चाहिए। देखो आप बेसिक चीजें ना भूला करें। आपने देखो याद किया था ओम्स लॉ के बाद हमने इफेक्ट बताया था आर इज इक्वल टू, देखो क्या था, रो एल अपॉन ए। याद आ गया आपको। आर क्या था, 1 अपॉन देखो कंडक्टेंस था आपका यहाँ पे, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जगह 1 अपॉन देखो आपने कापा लिखा था, एल अपॉन ए। देखो इस टाइप से कापा को आप ऊपर ले जाएं तो कापा इज इक्वल टू सी एल अपॉन ए। देखो इस टाइप से आपने निकाला था, ध्यान होगा आपको। तो सी मींस कंडक्टेंस की यूनिट बोलो क्या होगी, ओम इनवर्स, और यहाँ पे सेंटीमीटर में लेंथ, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, एक हो गया तो सेंटीमीटर इनवर्स। आ गई अब आपको याद सारी चीजें। तो मींस आपकी कापा की यूनिट बोलो क्या बन गई, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय, ये मोलरिटी किस में लेते हैं, मोल्स पर लीटर में। तो देखो मोल्स लिया हमने, देखो ये मोल्स पर लीटर का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, देखो सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया इतना। अब आप अब तो बता सकते हैं ना यूनिट क्या होगी। अब यूनिट बन जाएगी ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। ये जो सेंटीमीटर क्यूब जो हमने नीचे लिखा, देखो नीचे जो सेंटीमीटर क्यूब लिखा है यहाँ पे मोल्स पर लीटर है, मोल्स पर लीटर है, ध्यान रखिए। तो सेंटीमीटर माइनस में लिखेंगे आप CM-3, मोल्स पर लीटर इज द यूनिट है आपकी, ये ध्यान रखें। तो मोल सेंटीमीटर -3, तो एक से एक देखो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया सेंटीमीटर -2। ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोलो क्या, ये यहाँ पे मोल है अब की बार, मोल इनवर्स, सो दैट इज द यूनिट। तो ये आप यहाँ पे हर एक के आगे लिख देंगे जो मोलर कंडक्टेंस निकली कि ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये मोल है, मोलरिटी नहीं है, ध्यान रखें, मोल इनवर्स। सिमिलरली जो सेकंड भी आपका फार्मूला आया, जो डेल्टा कैटायन की जो वैल्यू आई आपकी मोलर कंडक्टेंस की, तो वहां पे भी आप यूनिट बोलो क्या लिख देंगे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से अपनी बेसिक चीजों का बिल्कुल भी ना भूला करें, क्योंकि देखो यूनिट अगर आपने गलत लिख दी एग्जाम में तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे आपके मार्क्स। कोई न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का है, आपको पूरा आता भी है, फॉर्मूला भी आपने याद किया बिल्कुल पूरा, लेकिन उसके बाद यूनिट आपने लिखनी ही भूल गए, लिखी नहीं, तो फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्या पता एग्जामिनर 1.5 मार्क्स दे दे, 3 में से आधे नंबर ही काट लें क्योंकि यूनिट लिखी नहीं, 2 मार्क्स दे दे, 2.5 दे दें, वो उसके ऊपर डिपेंड होता है उसके बाद। तो आप ये गलतियां कभी भी नहीं करेंगे, यूनिट आपको जरूर आनी चाहिए। फर्दर बी पार्ट क्या है, आयनिक मोबिलिटी निकालना ऑफ द टू आयंस। तो आयनिक मोबिलिटी हम कैसे निकालें, अभी आपने पढ़ा था कि जो मोलर कंडक्टेंस को किससे डिवाइड कर दे, 96500 फेराडे से। तो जो मोलर कंडक्टेंस आयनिक मोबिलिटी अगर कैटायन की निकालनी है, तो देखो मोलर कंडक्टेंस हमने कैटायन की ले ली, तो वैल्यू पुट कर दें जो ऊपर हमने निकाली थी। तो इस टाइप से आयनिक मोबिलिटी का देखो ये आंसर आ जाएगा आपका। सिमिलरली आयनिक मोबिलिटी ऊपर तो हमने बोलो किस चीज की निकाली है, ऑफ कैटायन की, देखो हमने निकाली है ऑफ कैटायन। सिमिलरली आयनिक मोबिलिटी ऑफ अगर आपको एनायन की निकालनी है, तो अब मोलर कंडक्टेंस बोलो फार्मूला में किसकी लेंगे, डेल्टा ए डिवाइडेड बाय वही 96500। ऊपर वैल्यू हमारी निकल चुकी थी 53.962, दैट इज द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द एनायन डिवाइडेड बाय द 96500। आंसर कम्स आउट टू बी 0.000559। आप कैलकुलेशन अपने लेवल पे जरूर करके देखें, हो सकता है मेरे से कैलकुलेशन में कोई गलती भी हो सकती है, आप उसको अपने लेवल पे जरूर कर लें, और अगर कोई एरर है तो आप उसको करेक्ट जरूर कर लें। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पे देखो स्पीड दे रखी है आपकी,
the speed ratio of silver and the nitrate ion in the solution of silver nitrate electrolyzed between the silver electrode is 0.916. स्पीड की रेशियो है, तो आपको ध्यान आया कोई फार्मूला? फाइंड द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द टू आयन। आपने ध्यान दिया होगा कि जो ट्रांसपोर्ट नंबर हमने निकाला था, देखो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन या ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन कोई भी निकाला हो, तो वहां पे आपका देखो एक फार्मूला आया था, आपने ध्यान दिया होगा कि द स्पीड ऑफ द एनायन डिवाइडेड बाय द टोटल स्पीड। ट्रांसपोर्ट नंबर को एन से लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे एक बार देखो मैं दोबारा लिखता हूँ। द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द एनायन हमने लिखा था Na इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द एनायन, देखो UA डिवाइडेड बाय द टोटल स्पीड UA प्लस UC, आपने ध्यान दिया था। सिमिलरली हमने ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन को भी ऐसे ही लिखा था, UC डिवाइडेड बाय UA प्लस UC, देखो इस टाइप से। फिर आपने ध्यान दिया था, हमने ये कहा था कि राइट हैंड साइड को आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करें UA से, देखो इस टाइप से, देखो UA से आपने डिवाइड किया था, ऐसे ही यहाँ पे भी आपने UA से डिवाइड किया था। सिमिलरली आपने कैटायन वाले केस में भी देखो UA से डिवाइड किया था, देखो ये। तो आपका फॉर्मूला बताएं क्या आ गया था? आपका फॉर्मूला आया था Na इज इक्वल टू, ऊपर से देखो ये कैंसिल होके, तो 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी UA से UA कैंसिल, तो 1 प्लस बोलो UC प्लस UA मींस द स्पीड ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ एनायन की रेशियो को हमने R कहा था। तो Na इज इक्वल टू क्या था? ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन क्या था? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R। R क्या है? दैट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कैटायन बाय एनायन, कैटायन बाय एनायन, उसको हमने R कहा था। तो यहाँ पे सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फार्मूला आया था NC इज इक्वल टू बोलो क्या था? R डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस में R, मींस ये दो फार्मूले हमारे निकले थे, ये आपने ध्यान दिया होगा। तो अब यहाँ पे गिवन क्या है वो चीज आप बताएं। द स्पीड रेशियो ऑफ सिल्वर आयन डिवाइडेड बाय द नाइट्रेट आयन मींस कैटायन बाय एनायन, कैटायन बाय एनायन, कैटायन बाय एनायन की रेशियो को ही तो हमने R कहा था। तो मींस R की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है यहाँ पे। तो मींस Na का फार्मूला बोलो क्या था? जैसे अभी आपको बताया Na इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R, और R क्या था? NC डिवाइडेड बाय Na, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दें। इसकी वैल्यू क्या गिवन है? 0.916 वैल्यू इज गिवन। तो Na इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R, R की वैल्यू पुट करें तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.96, और जब कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.512। दैट इज द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन आ गया। और एक चीज का ट्रांसपोर्ट नंबर आ जाए तो आप जानते हैं द सम ऑफ द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन इज 1। तो मींस NC प्लस Na क्या होता है? NC प्लस Na क्या होता है? तो NC प्लस Na इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो NC किसके इक्वल आ जाएगा? 1 माइनस Na। Na हमारा ऊपर निकल गया था, तो Na की वैल्यू आप पुट कर दें यहाँ पे, 0.512 आप यहाँ पे पुट कर देंगे, और फिर आपका आंसर क्या आएगा? 1 माइनस 0.512, दैट इज कम्स आउट टू बी 0.479। दैट इज द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन। तो इस टाइप से आप ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन को भी यूज कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट फार्मूला। जो भी फार्मूले आज हमने सीखे, कुछ एक को हमने यूज किया अपने इन न्यूमेरिकल्स के अंदर। सो दैट इज टुडेज लेक्चर अबाउट द डिफरेंट बेसिक टर्म्स, और उनके ऊपर कुछ हमने न्यूमेरिकल्स भी देखे। माइग्रेशन आयन को हमने देखा क्या होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर को देखा, उसके डिफरेंट फार्मूलेज क्या है वो देखे, और ट्रांसपोर्ट नंबर के अंदर भी फर्दर देखो हमने R किसको पुट किया, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द कैटायन बाय द स्पीड ऑफ द एनायन को हमने R से रिप्रेजेंट किया। डायरेक्ट देखो इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है, जैसे अभी हमने निकाला। तो ये चीजें आप ध्यान जरूर रखें। तो ये डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर ऑन द माइग्रेशन ऑफ आयंस, द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयंस, द आयनिक कंडक्टेंस, और साथ के साथ हमने देखा द डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द ट्रांसपोर्ट नंबर। सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू।